कोई तो मिलेगा जो हमसे प्यार करेगा, हम जैसे हैं वैसे करेगा. Okay, so tell us a bit about your podcast. Let's start with yourself actually. पहले let's tell us about yourself. मैं एक अच्छा बच्चा हूँ. Just at this point, यार, I'm a comedian and pretty much was doing stand-up comedy full time. Coronavirus outbreak से पहले. So अब like everybody just figuring out what the next step is कि करना क्या है ज़िंदगी में. तो no idea what the future holds. Live shows तो मुझे नहीं लग रहा are happening anytime soon. So much like everybody moving digitally, figuring out what the new landscape looks like now. So, first when you did venture into this field, you knew that this was not that stable, right? Pakistan में तो अब चलो बाहर होता तो फिर it was still a bit flaccid, फिर भी जाया जा सकता था. पाकिस्तान में तो there's no scope कहा जाए तो. ये flaccid क्या होता है यार? ये आप गलत इमेजरी दे रहे हैं आवाम को. Let's move on. गलती से निकल गया था. देखिए आपने just because I told you I'm old, आप ये flaccid बातें करना शुरू हो गए हैं. यार, I sort of stumbled into it. So I mean, I wasn't thinking I'm gonna make millions. जिस तरह हमारी भी offline भी बात हो रही थी, I did go to LUMS. I did my BLB. So अगर पैसे ही कमाने होते तो that's a good way to make some money, right? If nothing else, LUMS का एक market में नाम है. Yeah. You can do something or the other. It's a lot of it is about finding my own voice and making that voice useful to do something. So I started off doing theater. This is 2009 में मेरा पहला professional play हुआ. Where I directed a play. He's like shit. 2009 में तो हम लोग 9 साल के थे. हम लोग 8-9 साल के थे. हम Ben 10 खेल रहे थे. Yes, it was that far back. This is how old I am at this point. So I started doing theater, then ventured into improv and stand-up. Pretty much happened at the same time. And a lot of it, I wasn't thinking that this is going to be my profession. It's just one thing led to another, started getting opportunities, got a Fulbright to do a master's in theater, could not say no to that. तो बस फिर एक के बाद एक सिलसिला चलता रहा. टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आज तक मेरे माँ बाप पढ़ रहा है एक तो कर लोगे ना लॉ. आई एम लाइक हाँ बस 1 साल और फिर लॉ कर लेंगे. तो never really thought about के how much money I'll make or what it looks like as a career. तो वो ख्याल तो कभी आया ही नहीं. जो माँ बाप की बात की है, that was gonna be my follow-up question के 2000s की बात चल रही है. 2000s में चलो अब थोड़े और liberal हो गए पेरेंट्स. 2000s में तो it was pretty dark. और उस ज़माने में to come out and say कि मैंने comedy में जाना है and to do performing arts and shit, how did you get your parents to agree to that? Not well. देखिए जिस तरह अभी लम्स फी हाइक चल रहा है तो सबको आइडिया हो गया है कि लम्स के पैसे कितने होते हैं. तो इतने पैसों के बाद टू बी लाइक ये अब इसको आप जला लें तो एंड ये कोई बात मतलब या तो ये होता है ना कि आई कम फ्रॉम प्रिविलेज. आजकल हम क्वारंटीन है तो सबको मेरा घर वर भी नज़र आ रहा है. आई डोंट कम फ्रॉम प्रिविलेज. आई एम माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है आई एम लॉट बेटर देन मोस्ट पीपल. खाने को है लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि मेरी जायदादें हैं. आई हैव अ फॉल बैक प्लान दैट इफ आई डोंट मेक मनी आई एम ऑन माई ओन प्रीटी मच. तो मेहनत करनी है. विदाउट मेहनत देयर इज नथिंग एल्स. आई थिंक पेरेंट्स जल्लाद नहीं होते यार, अच्छे लोग होते हैं. उनसे ज़रा कभी बात करो तो पता चलता है कि हाँ यार ये भी अच्छे लोग हैं. So when they see that you're passionate, right? A lot of people message me, they're like, oh, I want to be a stand-up comedian. I'm like, what do you do to be a stand-up comedian? They're like, nothing. I just think I want to be one. हमारा BBC moment होने वाला है. फिर बिलाल की अम्मी like, बिलाल तुम्हें शहरी में क्या खाना है? देसी households. Right. तो if they see you're passionate about something, right? They will also see कि हाँ ये बकवास नहीं कर रहा. So with stand-up comedy, I was working harder than I would have for a 9-to-5 job. अब मैं shows कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, and after a while they're like हाँ ठीक है ये passionate है and also doing well, right? I mean parents का major concern क्या होता है कि भूखा ना मरे. Yeah. तो if they see you doing well and they see you being happy with what you're doing, I think that goes a long way because their desire to make you a doctor or an engineer is rooted in wanting good for you.
तो इट्स नॉट कि जी आपने क्या मैजिक वर्ड यूज किए जैसे आपके माँ बाप कन्विंस हो गए. इट्स अ प्रोसेस, साल लगते हैं. यू शो देम विथ योर बिहेवियर मोर देन जस्ट योर कॉन्वर्जेशन. आई मीन आई हैव डन जॉब्स एज वेल. तो नौकरी भी करो फिर साथ ये भी करो, थोड़ा अपने आप को ज़्यादा पुश करना पड़ता है एज अपोज टू मे बी वेस्टर्न. आई मीन इट्स अ ब्रॉड जनरलाइजेशन टू से वेस्ट में ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है. बट आई मीन प्लेसेस वेयर आर्ट्स मे बी रिस्पेक्टेड अ लॉट मोर एज प्रोफेशंस, मे बी द स्ट्रगल इज नॉट एज हार्ड बट यू गॉट अ स्ट्रगल मैन. क्या कर सकते हैं, मजबूरियां हैं बहुत ज़्यादा. At the end of the day, parents like they want the best for us. ये नहीं है कि वो मतलब हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं कि they want obviously the best for them of the Intention is right. अच्छा हम आप क्या चीज मेरा माइक फिर नहीं चल रहा मेरे ख्याल से. नहीं चल रहा है मैं क्या कह बोल रहा रहे हूँ हो? intention is right. मतलब जो तुम बात कर रहे हो उस पे हाँ, intention is right. बेशक. Yeah, अच्छा, let us tell you about ourselves. हाँ. बिलाल अपना इंट्रोडक्शन दो यार. बिलाल इज सो स्केर्ड ऑफ हिज माइक, इज लाइक मैं कुछ कहूंगा ही नहीं क्योंकि माइक फिर नहीं चलेगा. तो ये इज लाइक मैं आपको बोलूंगा ही नहीं, मैं आप सुनूंगा सारी बातें. मेरा माइक चलता है, मुझे बाहर रिपीट करनी पड़ती है ना. I'm like यार सब तक चुप ही रहो. इससे पहले कि 2 दफा बोलना पड़े उससे बेहतर है कुछ बोलो ही ना. कुछ कहो नहीं, आज कुछ सुनो. पॉडकास्ट करेंगे हम लोग. जी यार अपने बारे में इंट्रोडक्शन तो नहीं, इंट्रोडक्शन दो अपना. मैं दूं. या वेल आई एम 80 यार. मैं इंट्रोडक्शन तू दे ना यार. अच्छा, मैं इस इंट्रोडक्शन दे देता ये हूँ. मुझे क्यों लग रहा है यार कोई मतलब रैंडम टिंडर डेट पे है. मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं यार. तू बता, तू पहले बता तू कौन है. And my name is Sahibzada Hassan Mansoor Bughi. That's 4 names. That's my name. I'm 17, kind of, almost 17. I'm in A1. हैशटैग barely legal. अगर कोई ये टॉरेंट पे सर्च मत करें जो लोग सुन रहे हैं इस चीज को. I'm in A1. What else? Business, economics और psychology पढ़ रहा हूँ मैं. और क्या. Yeah, that's it. We've been doing this podcast. रिश्ता पसंद आ रहा है पति तू. ये बता रहा. शुक्र है मैंने तुझसे शुरू स्टार्ट किया है. इकोनॉमिक्स पढ़ो, बिजनेस We've पढ़ो. been doing this. अगल ने क्या तेरा रिश्ता बेटी आपकी हुई. These are the most important things for We've kids. been यार. doing- आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? I think आपके जो ये लूमन और whatever मंस में फ्लर्टिंग होती है, आई थिंक यहीं से शुरू होती है. आप एक्सक्यूज मी, आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? सब्जेक्ट से नहीं शुरू होती. मैं बताता हूँ. मैंने कोई किए हुए 10-15. ठीक है, मैं बताता हूँ मंथ में क्या चलता है. इंटरेक्शन होती है इस तरीके से. आप किस कमिटी की हैं? ठीक है, अच्छा आप इस कमिटी की हैं. या आई एम फ्रॉम दिस कमिटी एज वेल. अच्छा आपकी क्या कंट्री है? युगांडा. आई एम जिबूटी. मिलते जुलते तो नहीं है बट वी कैन फॉर्म अ ब्लॉक. हाँ, फिर ब्लॉक के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं. दोस्त ब्लॉक, मुझे इन बातों पे another. लगता है आप ब्लॉक जो है ना वो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे होते होंगे. अगर आप इस तरह यू आर गुड कमिटी इज गुड या लेट्स पास अ मोशन टुगेदर. आई थिंक इसके बाद आप हर सोशल मीडिया पे ब्लॉक होंगे. उनके ब्लॉक में तो नहीं आएंगे आप. नहीं आ जाते टेंशन ना ले. डेस्परेट टाइम चल रहे हैं. ये एक फायदा हो गया ना लाहौर में ऑल गर्ल्स स्कूल होने का. दैट लाइक ऑप्शंस बहुत कम है लोगों के पास. लाहौर में कोविड है बहुत ज्यादा. ऑनेस्टली कहाँ है? कौन? मिसकंसेप्शन है. लाहौर में ऑलमोस्ट सारे कोविड है. ठीक है, कहाँ ये? दैट्स लाइक वो जो इस्लामाबादी को होते हैं. नहीं मिसकंसेप्शन है. इस्लामाबाद में अच्छी खाने की जगह है नहीं. आई मीन कोविड. Yeah, but you're in Musab, right? So if one has to go to Musab just to be in a co-ed school, that's not worth it. इसको इतना पता कैसे है? इसको इतना पता कैसे है बड़ा? ये सर्च क्यों करके आया है? Unlike you guys, I did my research. I wasn't like आप लोग. मुझे मेरे घर का एड्रेस तो नहीं पता ना आपको. आपको मैंने भेजा था अभी वो आए थे बताने. ये बाहर कोई आए हैं आपसे मिलने. So yeah, if one has to go to Musab just to be in a co-ed, I don't think that's worth it. फिलहाल सिटी रावी में पड़ता है. Shots fired. रावी में मैंने नौकरी की है. रावी का मैंने नमक खाया है. मैं रावी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता. नहीं, लेकिन honestly all girls सिर्फ एक कनेड है और यूनिवर्सिटीज हैं जो मेडिकल है.
But that's देखो it. देखो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तो करना मुश्किल है बट राइट इफ यू टॉक अबाउट स्कूल्स व्हाट आर द बेस्ट स्कूल्स इन लाहौर HSN which I don't think is a great school but perceived to be one Yeah, all boys. segregated LGS segregated और टॉप स्कूल्स क्या हैं लाहौर में JT से segregated है. सारे LGS हैं 1A1 55 मेन MT सारे ही हाँ. सारे हैं Defense phase 5 वाला नहीं है. वन अच्छा हाँ, yeah, you're right, I guess. आई सर थिंक जी, ये है बोले यार आजो। बहुत बोले आ जाओ चल क्या सही No, बात. but I think it's also I mean as you guys are kids अगर हम relevant बातें करें I don't know if you guys are following आजकल वो boys locker room एक Yeah, I know एक about हुआ है it. right and I'm sure you've encountered those boys I'm sure you've spoken to people who are like that in real life Yeah. a lot of that comes from ये जो all boys और all girls school होते हैं ना and जो आपने MUN की भी बात की you guys are that age you guys are boys आपको पता है कि MUN पे जा रहे होते हो तो एक डिस्कशन होता है कि यार उफ कोई लड़की बात करेंगे पटाएंगे बिकॉज द आइडिया इज कि और हाँ हम अगर 1A1 चले गए या 55 मेन चले गए इट्स वेरी गर्ल्स एज कॉन्क्वेस्ट यू डोंट रियली सी देम एज ह्यूमन बीइंग्स इट्स अ वेरी कॉन्क्वेस्ट टाइप मेंटालिटी कि जी हम कुछ किला फतह करने जा रहे हैं तो by not having co-ed schools I think you don't form early friendships where you start seeing women as human beings as well as opposed to just कि इनके साथ रिलेशनशिप सिर्फ सेक्सुअल हो सकता है अगर आप लूमन शूमन पे भी किसी लड़के को लड़की से बात करते देखें रैंडम यू जस्ट अज्यूम कि ये कुछ रिलेशनशिप या सेक्सुअल एंगल में जा रहा है यू कांट अज्यूम दैट दे आर जस्ट फ्रेंड्स व्हिच आई थिंक अर्ली कोएड स्कूल्स में आप डेवलप करते हो नहीं मतलब I've like grown up always with a co-ed education. तो हाँ बट तुम मुसब गए थे ना वो नहीं काउंट वो हम काउंट ही नहीं करते उसको अच्छा so yeah I've always grown up with it. स्कूल और इज्जत लाइक कोई तुम्हारे चाचा है कि हाँ वो मुसब आते हैं पढ़ाने अबे एक स्कूल का नाम है या ये अंकल है एक वायद ये मुसब चाचा मुझसे बुक कराते हैं पढ़ाने फिलहाल ये मुझसे में पढ़ा हुआ पहले बकवास करी जा रहा है. मुसब के अंदर पढ़ा हुआ है बिलाल तुमने किस किस्म की पढ़ाई की है अच्छा I was making a point मेरे point ना भूल जाए. हाँ अच्छा yes so I've always grown up in like co-education ना तो like हमारी तो interaction होती रहती थी class projects वगैरह तो हमारा इतना like when I was introduced to MUNs इतना कोई ज़्यादा difference नहीं था like हमें इतना कोई complex नहीं होता था about girls and shit like we've always interacted with them so we did perceive them as humans so मेरे ख्याल से like मेरा personal opinion है but मेरे ख्याल से co-education ही होनी चाहिए all boys and all girls वाला नहीं होना चाहिए ऐसे. I agree with you. बिलाल साहब ने पढ़ा है पहले सारा all boys अब जाके हुआ है बिलाल का co-education. और अल्हम्दुलिल्लाह I have never been to this mentality कभी भी जिंदगी में. माशाल्लाह. Yeah, देखो it's not just Individual. yeah because it's culture बन जाता है ना एक चीज so for instance I went to the करने city पड़ती school है. कराची में इसीलिए मैं तुम्हारे स्कूल पे शिट ऑन कर सकता हूँ बिकॉज मैं बहुत एक शिटी स्कूल गया था तो वो जिस तरह एक एन-वर्ड लाइसेंस होता है ना बिकॉज आई वेंट टू अ बैड स्कूल आई कैन मेक जोक्स अबाउट अदर पीपल्स बैड स्कूल्स तो सिटी स्कूल 6th ग्रेड तक को था देन 7th 8th 9th 10th देयर लाइक अब इनकी खड़ी हो सकती है अब इनको जरा आप साइड पे करो तो फिर वो ऑल बॉयज कर दिया था एंड देन ए लेवल्स अगेन आई वेंट टू लाइसियम व्हिच वाज को एंड देन लम्स तो वो आई हैव सीन दैट कल्चर सो अ लॉट ऑफ जब इस तरह की बातें होती हैं आई कैन अंडरस्टैंड वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम व्हाट द मेंटालिटी इज बॉयज़ का सीन क्या होता है एंड पीपल रियली नीड टू कम्युनिकेट टू देम टू शो देम कि यार ये स्टूपिडिटी है दिस इज टेरेबल द थिंग्स यू से एंड वो बॉयज़ माइट बी इन अ बेटर प्लेस टू डू इट अनफॉर्चुनेटली एक परसेप्शन बन गया है especially with the growth of the incel culture के women and men are against each other boys and girls का तो कोई फड्डा चल रहा है is a battle of ideology which is why अगर आप feminism कह भी दें तो a lot of boys would just reject it altogether just because the word feminism is in there so boys like you I think having those conversations and honest conversations and calling things out having had better experiences than most I think you guys are very well placed to have these conversations and hope that the next generation grows up a lot better. Yeah,
सही बात है. मतलब like अपनी मैं personal experience ही बता दूँ. Like I advocate for feminism and like औरत march etc. अब मेरा ही group ले लें. मेरे group में like मैं अगर हल्की सी भी बात कर दूँ ना, everyone's gonna like जल्दी से बस रिजेक्ट कर देना. और फिर अगर मैं उस एक्चुअल इशू की बात करूँ ना अलहदा से, they'll be like yeah तुम सही कह रहे हो, ठीक है, obviously this should be highlighted, इसको खत्म करना चाहिए, like domestic abuse etc. लेकिन like अगर औरत मार्च इस चीज पे बात कर रहे हैं तो that's wrong. अगर like individually इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जा रहा है that's right. तो एक माइंडसेट बन गया ना that this is wrong, this is right, और बस this is a like war against genders, which is wrong. Yes. Yeah. अच्छा, I think चलो, it's also easy dismissal, right? कि मैं अगर कहूँ कि जी ये इंसान यहूदी साजिश है, ये तो बिकावा है, ये एजेंडा है. सो लाइक फॉर इंस्टेंस अगर कोई टीवी चैनल है, आई से कि यार ये तो है ही बिकावा. सो आई डोंट हैव टू कन्फ्रंट एनीथिंग दैट दे से. ओके, जियो हो गया, डॉन हो गया, दे पोस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स विद अ टिंज. But if in my head I just follow one news agency because they say things that I believe in, मेरा belief system reaffirm हो रहा है. Like जिस तरह अगर Google search it can be something as simple as उस दिन मैं और मेरे दोस्त थे and we were discussing whether you should brush after waking up or after having breakfast, which I think is stupid. You should brush after waking up. So we're like, let's Google it. She Googled, should you brush after eating breakfast? I Googled, should you brush before eating breakfast? दोनों को हमें हाँ मिला and both of us were like ये देखो, because we were searching based on a result that we wanted. yeah. मैंने search ही ये किया should you brush before breakfast. perception की बात आ गई ना यहाँ पे. But I'm not looking for the truth. I'm looking for a reaffirmation of my own belief system. मैं अगर एक चैनल पे बैठ रख दूं कि यार जो ARY कहता है वो सच है, तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो ही रिफ्रेश होता रहेगा ना. एंड डॉन अगर जो कहता है वो झूठ है. सो यू रियली गॉट टू ओपन योर माइंड एंड लिसन टू पीपल कि यार चलो ठीक है, खलीलुर रहमान है, आई मीन आई डोंट लाइक द गाय, आई थिंक ही इज एब्सोल्यूट फिल्थ, बट हो सकता है कभी वो कोई स्मार्ट बात कर ले. आई मीन आई एम नॉट गोना रिजेक्ट दैट. डिड ही गो अवे? व्हाट हैपेंड? बंद हो गया क्या पता. आई थिंक इसमें ईगो का भी फैक्टर आता है. Are you going to expand on that, Bilal, or are we waiting for अच्छा. चलो भला आगे उसको. I'm sorry, I'm back. हाँ, continue. नहीं, Bilal was saying something about the ego. ईगो मैंने बात सुनी है, क्या करो मैं कह रहा हूँ उसमें ईगो का फैक्टर भी आता है बिकॉज यू नो यू आर ब्रशिंग योर ओन पर्सपेक्टिव. ठीक है ना, कि देखो वो भी यही उसको ना बाय affirming it with channels you only क्या कहते हैं that agree with you. ठीक है ना, मतलब आप किसी और बाकी सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो रिजेक्ट करोगे भाई मैं जो कि उससे इख्तलाफ करता हूँ तो मैं उनको सुन नहीं रहा. तो इस तरह का ईगो का फैक्टर आता है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वही सच है, वही हक है, और जो मेरे साथ वो अग्री कर रहा है इसलिए वो भी सही है और वही सच है. Yours, very stupid. I think आपकी ग्रोथ नहीं होती इस तरह. मतलब वही आ गया ना, to like make your mind open to other ideas. बस ये नहीं like perceive करना that you are right on everything. Obviously there's going to be someone जो मर्जी फील्ड ले लें, जो मर्जी टॉपिक ले लें, obviously there's going to be someone that's better than you on it. So you can't just assume कि you're always right and the other guy is always wrong. And I think एक quote है ना कि the mark of an educated man is that he can entertain an idea without accepting it. मुझे कोई आके कह दे कि जी कोरोना वायरस लैब में बना था, which I think is stupid and it's a conspiracy theory because all experts say कि wet markets और transmission species के through है, but मैं सुन लूँगा. I'm like चलो, I mean I can listen to what you have to say about this. Maybe there is some merit in it. Maybe कोई इंडिविजुअल है जिसने बनने के बाद उसको वेपनाइज किया, या अगर कोई कहता है कि जी बिल गेट्स जो है वो चिप लगा के सबको कंट्रोल करेगा. It's a ludicrous conspiracy theory, but I'll listen to it. Maybe there is some merit that a lot of times technology is made for the benefit of people, but it is misused, right? I don't think Mark Zuckerberg intended कि मैं Facebook बना के पूरी दुनिया को कंट्रोल करूँगा, उनके election swing करूँगा, but when it existed, it was manipulated. Cambridge Analytica came in, the data was used to literally sway elections. So a lot of times things are made with the right intention, but they are misused. So there is some merit to that. The fear that
a world where we have a digital record or we're chipped invades on our right to privacy. I think there is some merit to that. Without going to the extent of कि वो बिल गेट्स ने हम सबको कंट्रोल करना है और पोलियो की दवाई से हम सबको इनफर्टाइल कर बात देगा. हुई ना, we were doing a podcast में याद नहीं से थी, but उसमें हमने ये कहा था कि extremism of any sort is wrong. Extremism किसी भी तरीका का हो गया, मतलब power का like extreme use हो गया, like that's just wrong. चलें, let's like move from this. You know, इश्क में जायज है. I'm a life coach, ठीक है. तो उसमें हमने पढ़ा था, वो क्या कहते हैं उसको, एक चैप्टर्स में यही था कि देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड इंटेंशन, ठीक है था. देयर इज जस्ट डूइंग रॉन्ग, क्या कहते हैं उसको, बड़ी लंबी छोटी थ्योरी है, मैं उसमें नहीं घुस जा रहा. बट आई डू बिलीव देयर इज मोर देन वन, मतलब मोर ऑफन देन नॉट देयर आर थिंग के जो दोनों पर्सपेक्टिव किसी ना किसी जगह सही कह रही होती हैं, ठीक है. आई फील के समटाइम्स होता है ऐसे कि भाई मैं बात कर रहा हूँ, वो इख्तलाफ कर रहा है, तो मैं बिल्कुल अपनी पर रुका हूँ, वो बिल्कुल अपनी पर रुका रहता है, ठीक है ना. देयर लाइक नहीं, वो कंस्पिरेसी थ्योरी है, मैं वो कह रहा है मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये टू एंड फोर्स होता रहता है, लेकिन कोई इस तरह आपने कहा आइडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता. तो I think we often वो बात है कि we often debate to make the other person agree. We don't debate to listen. कि यार अच्छा चलो मेरी भी ग्रोथ हो जाए. I don't approach a debate with I will also learn. Maybe मेरी position, and नील ब्रेनन ने एक जो रोगन का पॉडकास्ट में बहुत अच्छी बात की थी. He said I'm not 100% anything, right? I'm maybe 90% something. I maybe 80% something. Quote भी है, if you're the smartest person in the room, you're the wrong room. Yeah. सुकरात ने कहा था ना, I'm Socrates, Socrates, he said, all I know is that I know nothing. And then उसको बोला, that is what makes you the smartest person in the world, because everybody knows nothing, but you know that you know nothing. So you know something more than everybody else. Everybody else also knows nothing, but they pretend they know something. So by saying all I know is that I know nothing makes you the smartest person here. So having that humility while approaching subjects, I think, is what makes you an educated person. सही. अच्छा जी, कंट्रोवर्सी का सीन है बॉय. कंट्रोवर्सीज में बड़े आप शामिल हुए हुए हैं, गुस्से हुए हैं. हाँ, कौन सी कंट्रोवर्सी? नहीं, मतलब कंट्रोवर्सी नहीं, एक सेकंड, नहीं सुन, क्या हो गया, मैं करता हूँ. आउट ऑफ ऑल देयर लाइक हमने कोई रिसर्च नहीं की, हमने बस एक रिसर्च की है. आप हमें जरा क्लिकबेट तो देना, आप हमें बताएं ना, कल मैंगो बात पे तो आए ना. मैं बताता हूँ. कुछ का वो एक्सपोजेस स्टैंड अप कॉमेडियन जी, बताइए कंट्रोवर्सी. Like, what was that scene where you made a psychologist cry? I didn't make a psychologist cry. A psychologist made me cry. Oh, sorry. No, you. Shazad making kids cry on their own podcast. नहीं है, वो 30 साल का उनका एक्सपीरियंस है. बच्चों को तो मैंने बहुत रुलाया है. बाय द वे, आई यूज्ड टू बी अ ब्रूटल थिएटर टीचर. अब मैं ये काइंडनेस एंड एम्पैथी की बात करता हूँ. लम्स में तो मेरे जूनियर्स पे चप्पल उड़ते हुए आते थे. अगर थिएटर प्ले में कोई गलती हो जाए, मेरा जूता उड़ते हुए आता था उन पर. तो उस टाइम तो मैं एक जल्लाद थिएटर डायरेक्टर होता था. अब मैं ज़रा सहम गया हूँ, तो मैं काइंडनेस और एम्पैथी की बात कर. यार वो सीन ये था कि बेटर हेल्प है, आई कम्प्लीटली नहीं, Relive Now is the organization. They had done a panel, so they invited me कि mental health का panel हो रहा है, तो आप भी panel पे आके बैठे. मैंने जी बिल्कुल. I went, I sat there. एक psychologist थी, she is the chair of the psychology department at Karachi University, Miss Qudsiya something, Miss Qudsiya Tariq, I think, if I believe that's the name. I'm not sure. तो उन्होंने कहा था कि आजकल के बच्चों जो है ना, वो थोड़े लेजी होते हैं. जैसे कि हमें डिप्रेशन हो गया. किस बात का डिप्रेशन है? आपके तो जेब में फ़ोन है, यू हैव द वर्ल्ड एट योर फिंगर टिप्स. आपको किस बात का डिप्रेशन है? ज़रा ब्रेव बनो, ये बनो. तो आई फेल्ट मैसिवली ट्रिगर्ड बाय लिसनिंग टू दैट, राइट, एज समबडी who's faced depression. एंड जो लोग ये सुन रहे हैं, ये बात आप जान लें, टिल यू डोंट एक्सपीरियंस इट, राइट, यू वुडंट नो. आप अगर मास्टर शेफ देखते हैं, उसमें वो कहता है कि जी we've made caviar, we've made risotto with caviar. जब तक आप खाएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, राइट, वो तस्वीर देखकर. Depression is very similar. For instance, if you're somebody who has never
who's never gone swimming, आपको मैं समझा नहीं सकता यार पानी फील कैसा करता है, right? I can tell you कि oh it has less density than air, so it'll feel slightly different. मुझे पता भी नहीं है if it has less density, but जो भी. But if you haven't experienced fire, if you haven't touched fire, if you have not been in water, you wouldn't know what those experiences are, what despite what you read. So having gone through clinical depression, it's not just feeling sadness, it's not just you being lazy. तो इस तरह की बातें मुझे बहुत ट्रिगर करती हैं, right? Because as a person you also go through this so much. It's so unfortunate that every single person who's depressed has to justify his or her depression to every single other person. जो उसको मिले उसका ओनस है कि जी मैं औरों को बताऊं कि मेरा गम असल है, कि मुझे भी दुख होता है. अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ इश्यूज नहीं हो रहे या मुझे दर्द नहीं हो रहा. तो हर इंसान को जस्टिफाई कर करके आपके अंदर जो थोड़ी भी स्ट्रेंथ बची होती है डिप्रेशन से लड़कर, वो भी ख़त्म हो जाती है. तो मैं बहुत हर्ट हुआ कि यार एक मेंटल हेल्थ का पैनल हो रहा है, आप मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे हैं, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका 30 साल की ट्रेनिंग है, वो इस किस्म की बात कर रही हैं. तो मैंने सिर्फ ये बोला कि आई फील मैसिवली ट्रिगर्ड एंड आई फील मैसिवली हर्ट. आई थिंक ये बहुत गलत बात है करने वाली. तो शी सेड नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रही थी, मैं तो लोगों को मोटिवेट करना चाह रही थी. आई सेड नहीं, आई फील वेरी सैड अबाउट दिस एंड आई डोंट थिंक इस तरीके से कहना चाहिए बिकॉज इट डिमिनिशेस. एंड एक अंकल फ्रंट रो पे बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि नहीं ये बिल्कुल सही कह रही हैं, ये हमारे आजकल के बच्चे हैं, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ लेजी हैं, इनको बोर हो रहे हैं इसलिए डिप्रेशन मिल गया. दैट्स द ऑडियंस यू आर स्पीकिंग टू. So you have to have context, right? If you're a Pakistani woman with 30 years of experience, you know the audience you're speaking to. So when you go on a panel and you say something like, and I'm focusing on this one line, it obviously had context. She obviously was not intending it to go this way. I don't think she meant to diminish or belittle depression, but that's how it came off. Especially in a society like Pakistan, where already uncle auntie तो बैठे होते हैं ना कि आजकल के बच्चे ये दुनिया के सबसे बुरे बच्चे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो 100 मील स्कूल चल के जाते थे, इनको किस बात का डिप्रेशन है. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट all of you live in a completely different world from them. Your experiences are different, your anxieties are different, your stresses are different. तो ये हुई बात, उस पर थोड़ी हमारी बहस हुई. एक लड़का खड़ा हुआ पीछे से, उसने बोला कि आप लोगों ने सब आके कहा है कि we should all say something how we feel. तो इन खातून की बातें सुन के मेरा तो दिल चाह रहा है मैं इनको मर्डर कर दूं. So that was like a massive oh shit moment. And then I went and hugged that guy, which came off as oh Shahzad is encouraging his murderous behavior. But what I wanted to say was यार कि अगर एक इंसान को इतना दुख हो रहा है कि वो बड़ी महफिल में खड़े होकर ये बात कह रहा है, it shows he's hurting. He's really not saying I'm going to be violent and murder this woman. He's really saying I want to kill myself, because he started by saying he's been suicidal and he came to this session wanting to feel better and it's making him feel worse. That's why I hugged him. तो वहाँ बात खैर ठंडी हो गई थी and then I started talking about what I do. So then फिर जब मेरे पे आया, they said Shahzad how do you do? I'm like comedy as a coping mechanism. I use comedy and it helps me, it's cathartic. तो जब मैंने ख़त्म किया तो she started saying कि मैं भी तो यही कह रही थी, अब ये कह रहा है तो सही है, मैं जब ये कह रही थी कि जी मोटिवेट होना चाहिए और डिप्रेस नहीं होना चाहिए तब मसला था, एंड आई हैव नेवर फेल्ट दिस इंसल्टेड, ये बच्चा है कौन. आई थिंक शी आल्सो टुक इट ऑन हर ईगो कि हु द एफ इज दिस किड, दिस यंग मैन, आई मीन नॉट एज यंग लाइक टू ऑफ यू. आपकी बात कर रही है ना? हाँ परेशान हो गया वो. यंग मैन आप कहाँ से, आप तो अंकल हैं. उनके लिए तो मैं यंग था ना यार, उनका 30 साल जो बच्चा जिसने खड़े होकर कहा था. नहीं. तो वो खातून जो थी उनको जरा मेरे ख्याल से बहुत बुरा लगा कि ये कल का बच्चा मेरे साथ एक तो बैठा कैसे है, बात कैसे कर रहा है. तो वो फिर उन्होंने बोला मैं जा रही हूँ. फिर वो मुझे होस्ट ने बोला आप अपोलोजाइज़ करें. मैंने मैं किस बात के लिए अपोलोजाइज़ करूँ यार, आप या तो मुझे वीडियो दिखा दें कि मैंने कोई गलत बात की, मैंने कुछ इनके पर्सनली खिलाफ बोला हो, मैंने कुछ, तो मैं 100 दफ़ा अपोलोजाइज़ करूँगा. And then some people in the audience were like, no, this guy is right. It's clear that he's hurting. तो फिर वो उन्होंने, she walked off, and I think she was on the verge of tears. So obviously she was hurt as well.
तो मामला वहाँ ख़त्म हो गया. दैट्स व्हाट इट वाज. बट टू से कि जी शहजाद ने उनको रुला दिया, आई थिंक इज मैसिवली अनफेयर. नहीं, I have no idea of it. मैंने बस like उसने हाथ ऊपर कर लिया. लाइक ये बिलाल है जो कंट्रोवर्सी के पीछे भागता है, हम नहीं है. मैं मना किया. बिलाल चाहता है आमिर लियाकत भी हमारे शो पर आए. अच्छा नहीं, like so according to you, the psychologist did this कि उसने बिल्कुल accept नहीं किया of like depression existing in teenagers, right? Yeah, I think that's a broad generalization. I think she said something which she didn't mean to say. At worst, I would say she was negligent, because she has to realize the audience she's speaking to, right? एक पाकिस्तान जहाँ already depression इतना diminish किया जाता है, I think by victim blaming थोड़ा और saying कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं and associating that with laziness, और even this statement यार कि बच्चों को किस बात का डिप्रेशन, उनकी तो जेब में फोन है, it's a ludicrous statement. तो yeah, I wouldn't say कि, I mean obviously she's a psychologist, she can't say कि depression doesn't exist. उसके बाद मुझे आए कुछ मैसेजेस के लोगों को उन्होंने गलत एडवाइस भी दी है, या कराची यूनिवर्सिटी में उन्होंने कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं किया. तो I don't know where she was coming from, what was happening in her life. The thing is ये easy तो किसी की लाइफ नहीं होती ना, easy किसी की लाइफ नहीं होती. I actually get a lot of messages to give a life coach, so I get a lot of messages about depression and stuff. ठीक है ना, ज़्यादातर heart breaks के होते हैं जो मैं चिढ़ती है कि भाई ब्रेकअप की बात ना करो मेरे से. ठीक है ना, क्यों ना करो I mean like क्यों ना करो, इसलिए ना करो क्योंकि मुझे आते ही ना, हर हफ्ते में कम से कम 2 मैसेज आते हैं, आते ही है भाई मेरा प्यार सच्चा था, वो छोड़ गया, अब मैं ठीक है छोड़ गया. मैं प्रॉपर सुनता हूँ, ठीक है. फिर ऐसा आता है बिलाल यू डोंट अंडरस्टैंड, माइन वाज डिफरेंट. मैं कहता ओके यू वर लाइक ये भी काट, तेरी वाली भी काटेगी. काटेगी तू इसको 5 ऊपर बिल्कुल खाली छोड़ दे. बार पर सुन के बड़ा ट्रिगर हो गया वो पोस्ट देखिए फेसबुक वाली जो ग्रुप में पोस्ट हुई है. हाँ 5 बिलाल यू शुड तू अपनी पत्नी को बोल के सारे जो है ना पेपर खाली छोड़ के आ, तेरा भाई पास कर. एक केस ना तू मुझे ना एक मैसेज आया, एक नाम नहीं लूंगा, मैं मैसेज आया, शी वाज लाइक ये है एंड आई एम बीइंग लेफ्ट ऑन सीन फॉर अबाउट 3 months. ठीक है, सीन तो करता है बट सीन नहीं करता. नहीं सीन कर देता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता. ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्या करूं. अब मैंने कहा भाई, मैंने कहा भाई मैं नहीं हूँ लाइफ को, मैं सॉरी रिलेशनशिप कोच नहीं हूँ, मैं खुदा का खौफ करो, मेरे पास सदा हो. ठीक है ना, लेकिन मैं सिंगल हूँ तो मैं रिप्लाई भी करूंगा और सीन भी करूंगा. ये जारी बात है, क्या कहते हैं, कोई ये तो मेरा समाजी हक है ना. ये लाइव कोचिंग कर रहे हो तुम बिलाल, क्या आप उसको जोड़ें भाई, अवेलेबल है. सो सीन ये था उसने, फिर खैर बड़ी उसने मैंने थोड़ा चिल किया, लगा देखो ये ऐसे बातें होती की, कोई क्या कहते हैं उसको, थोड़ी मोटिवेशनल बातें होती की. खैर मुझे ना फिर कोई, मैं खत्म हो गई, कोई 2-3 हफ्ते बाद दोबारा मैसेज आया कि ओए यू डोंट कैन आई कॉल यू. मैं कॉल मी, मैं कहा अच्छा कर लो. ठीक है, तो ये कहते हैं उसको, कहते यू डोंट बिलीव व्हाट हैपेंड. मैं खैर ये तो मैं व्हाट हैपेंड, कहते ही रिप्लाइड. मैं कहूँ वाओ, ही रिप्लाइड. मैं अच्छा कहता है कि ना शर्तें लगाई उसने. देखा शर्तें लगाता हूँ फिर मैं वापस आ जाऊँगा, ये 3 शर्तें. मैं अच्छा सुनाओ 3 शर्तें. पहली शर्त थी कि मेरी 4 दोस्तें हैं, तुमने उनको माइंड नहीं करना. दूसरी शर्त थी तुम्हारे सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह के हर सोशल मीडिया का अकाउंट मेरे पास होगा. तीसरी शर्त थी कि तुमने किसी लड़के से आइंदा जिंदगी में बात नहीं करनी, चाहे तुम्हारा कजन भी ना हो, क्यों ना हो. एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव और possessive. अच्छा, अब मैं सुन रहा हूँ, ठीक है. हाँ तो थॉट्स, अब मैं सुन रहा हूँ, थॉट्स. अब मैं शक्ल लिख रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ बिलाल साहब ठंडा रहना है, तपना नहीं है, तपो गया उससे शुगर देना है, तपना नहीं है. देखा आप हो क्या उसकी, मैं ऐसे पूछा था आप हो क्या उसकी. कहती व्हाट डू यू मीन. मैं कहा अब क्या हो, मतलब व्हाट इज आपके ख्याल में अब क्या हो. कहती वेल आई एम हिज गर्लफ्रेंड. वाओ. मैं कहा अच्छा, कभी तो कुत्ती लग रही हो. कैसे लाइफ कोच हो यार तुम, तो मतलब तुम इंसान को और दुख में भेज दो.
लोग तुम्हारे पास आते हैं मोटिवेट होने, you're like हाँ तू कुत्तिया है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बड़े मेरे बड़े क्या कहते हैं उसको, I think इस पॉडकास्ट में कोई नहीं आ रहा, जो ये सुनेगा ना वो तुम्हारे पास लाइव कोचिंग के लिए तो कोई नहीं आ रहा। एक धंधा तुमने बंद करवा दिया है अपना। ये मैं कट कर दे, ये काट दे ये काट दे। No, I mean apart from referring to her as that, which is problematic, but हाँ नहीं of course यार, ये जो लड़के enslave कर देते हैं कि जी गुलाम है, it's पता नहीं यार, I have no idea। मेरी चार दोस्तों को बाइंड नहीं करना और खुद तुमने किसी से बात नहीं करती और नम अपने सारे अकाउंट मुझे दे दो, मेरा किसी ने इतना ही देना तुमने। But do you realize कि all this comes from just deep rooted insecurity कि यार कोई भी लड़का इससे बात कर लेगा तो ये तो पड़ जाएगी, ये तो मतलब मुझे छोड़ देगी, आई एम नॉट इनफ। सो वो आप अपनी इनसिक्योरिटी दूसरे पे प्रोजेक्ट करते हैं बिकॉज यू फील लाइक यू आर नॉट गुड इनफ। यू थिंक कि अब तो किसी और लड़के से बात ही नहीं कर सकती। द ओनली वे दिस पर्सन विल लव मी और बी इन अ रिलेशनशिप विद मी इज इफ शी इज लिटरली माई स्लेव। सो इट्स योर deep rooted insecurities which you're projecting onto the other person। तो जो ये लड़के हैं आई रियली फील कि लड़कों को सही करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो अक्सर मसले होते हैं वो लड़के अपने मसले प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस भी है, डोमेस्टिक अब्यूज भी है, यू आर द प्रॉब्लम राइट, द वुमन इज नॉट द प्रॉब्लम। आई मीन 99.999 केसेस मर्द होते हैं जो करते हैं, शायद कोई 1 in 1000 केस हो जो औरत डोमेस्टिक वायलेंस करती है। जनरली इट्स men, right? I mean, let's be honest about it। और वो उनके मसले हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज हैं। एंड बता मैं ही रहा था मैं भूल गया था, मैं बता रहा था, मैं कहानी चला गया था। बता मैं ही रहा था कि there comes a time when a person comes to you, he just wants to hear things which he wants to hear। मतलब मैं आपको बताओगे ना बाकी चीज़ों का तो सुनेगा ही नहीं, तो जब वो सुनता है जो आपको जो सुनना चाहता है वो, ठीक है ना। एंड वन थिंग आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इज फॉल्स होप, ठीक है ना। बिना वजह की होप देना है, बिना वजह का ना किसी को भी वो देना, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। बिना वजह किसी को प्रेशर देना, तो वो चाहता ही है कि भाई मुझे आप बताओ कि हाँ तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, मुझे फ्रेम गलत हुआ है, ये हुआ है वो। मैं कहा भाई हुआ है, लेकिन सबके साथ ही होता है क्योंकि लाइफ इज नेवर फेयर, लाइफ इज नेवर मेंट टू बी ईजी, ठीक है ना। मेरे साथ भी हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है, तुम्हारे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तुम्हारी जिस तरह तुम्हारे पे ज़्यादा इस तरह टेस्ट आ रहा है, कुछ लोगों पे मेंटल आता है, कुछ लोगों पे फाइनेंशियल आता है, कुछ लोगों पे इकोनॉमिकल आता है, कुछ लोगों पे फिजिकल आ जाता है, ठीक है ना, बीमारी के तौर पे। वो तो बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन टेस्ट हर बंदे पे ही आएगा, ठीक है। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑन दैट, ठीक है। तो मैंने कहा बात बस ये है कि इट्स नॉट लाइक यूर इन आउट ऑफ, मतलब बहुत ही दुनिया से बाहर चीज़ में। आई जस्ट टेल व्हाट यू गोइंग थ्रू, ठीक है। आई हैव बीन थ्रू इट एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू इट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ इट। दैट्स व्हाट आई सिंपली टेल पीपल, ठीक है ना। एंड कुछ से ट्रिगर देते हैं, कुछ से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन ले लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई गेस। बिलाल अब अपनी वापस दुकान चला रहे हैं। लाइक देखो मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं ये अच्छी एडवाइस भी देता हूँ। बिलाल शिट मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया। बिलाल बैक ट्रैक कर रहा है। Sometimes I give good advice, sometimes I आ जाओ काफी तो प्लीज कोई आ जाए, खुदा का वास्ते। ये सारी स्पीच हमारे लिए नहीं थी, ये ऑडियंस के लिए थी। प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन होगी। हाँ कि नहीं मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं सबको कुत्ती नहीं बोलूंगा, कुछ लोगों को एडवाइस दूंगा, कुछ लोगों को अपना नंबर दूंगा। उसके बाद भी बात चली वो मतलब कहती हाउ इनसेंसिटिव यू आर। मतलब नहीं, आई एम सॉरी, आई एम बीइंग हार्श, लेकिन आप समझोगे इस तरह। अब द थिंग इज कि उसने क्या कर, मैंने कहा आपने उससे क्यों पूछा कि भाई वो कि दोस्तों से बात कर रहा है अपने। कहता लॉजिक सुनो, कहते देखो आप इतने कहते हैं इस्लाम वो करते हो रिफ्लेक्ट, तो इस्लाम भी तो 3 शादी जायज़ है। मैं शक्ल देख रहा हूँ, मैं को ओ वाओ। अब इस तरह के बंदे को पता क्या जवाब दे। इसने मैंने से पूछा है, मैंने कहा ठीक है, शी इज हैप्पी बीइंग वन ऑफ द 4 वाइफ्स। अब मैं क्या करे यार। माशाल्लाह। मुझे तो लगता है कि यार हम जो है ना a lot of the multiple different sexualities की हिस्ट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये जो किंग्स हैरम्स बनाते थे 27 बीवियों के साथ, तो वो क्या ही करती होंगी यार, आपस में बोर तो नहीं होती होंगी ना कि जी 27 अगर बीवियां हैं, आधा टाइम जंग पे है मुगल बादशाह, वो 1 महीने के लिए वापस आए, सबको एक दिन ले, तो क्या करना है उन्होंने फिर। वो आई एम श्योर दे फाउंड वेज टू लव ईच अदर व्हाइल द किंग वाज गॉन। हाँ नोटी कासिम में गया
मैं भी बीवी हूँ तो क्यों नहीं यार, करें यार, एक्सपेरिमेंट करें. आई थिंक सेक्सुअलिटी और जो सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन है, आपके जो भी बिलीफ सिस्टम्स हैं उसकी कन्फाइंस में लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए और टैबू नहीं बनाना चाहिए इसको कि यार ओ माय गॉड, करो यार जो करना है करो. स्पेशली कोरोना वायरस आ गया, मरने वाले हैं सारे, अभी टाइम है, जो कर सकते हो करो. ओह वाह, ये भी है. चल let's drop this थोड़ी. हाँ, Yeah. थोड़ी और कंट्रोवर्सी बात करते हैं. अब हमारा अगला सवाल है कि आपने जो रुलाया है, नहीं let me see ये आंसू क्यों बहाए आपने? कि आपने लहू के आंसू जो बहाए हैं, एक एक आंसू का कतरा आपको क़यामत के दिन उसकी देना पड़ेगा, सजा होगी आपको. अच्छा. हाँ, ये थोड़ी तो एक कंट्रोवर्शियल डिप्रेशन बात मुझे, रो अच्छा, मैं, हाँ. ट्रिगर मैं हूँ, हाँ. दुख सारे मेरे, इल्जाम भी मेरे पे. गुड यार. अच्छा sorry Major हमें नहीं victim. पता. sorry. अच्छा मुझे हमें कोई contact अन्य करना बाद वाद में. आए थे. हमें Point कॉन्टेंट, हमें वाले कोई को परवाह नहीं contact है, हमें कॉन्टेंट चाहिए, ठीक है ना. आप बकवास बंद हाँ. करें, आपको हमने इसलिए बुलाया है. डू योर रोल. नहीं हमें अन्य वाद डीएम्स आए थे ऑन ट्विटर कि ask him about his stance on the LGBTQIAP. What's उसके that? अलावा भी एक सवाल आता है कि आपको आप जो ब्लॉक क्यों करते हो लोगों को जब सवाल पूछते हैं डायरेक्टली? कौन से सवाल पूछते हैं? अगर मुझे, भाई मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी दुकान चल रही है मुझे गालियां देकर, तो मैं क्यों ना ब्लॉक करूं तुम्हें? आई मीन देयर आर लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स जो ट्रोल अकाउंट्स से मुझे गालियां देते हैं. आई विल ब्लॉक इट. माय मेंटल हेल्थ इज वर्थ अ लॉट मोर. इन टर्म्स ऑफ सवाल, आई मीन अगर मुझे कोई मसला होता, तुम लोगों ने मुझे बुलाया पॉडकास्ट के लिए, डिड आई से एनीथिंग कि नहीं ये सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते तुम लोग? ये मुझसे अगर सवाल मैं पूछा बता दूं तो तो मैं, पहले बात हो रही थी, कॉल से पहले बात हो हाँ, रही थी, जो काट दिया था हमने. कौन सा? जो कॉल से हाँ पहले शिट, बात हो रही थी. वो लीक्ड वीडियो मत चला देना जो मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस भेजे हैं कि ये 6 सवालों के मैनेजर अलावा जो भेजा मुझ मेरे मैनेजर ने जो हाँ ये सारी बातें बताना नहीं तुम लोग. तो या आई मीन आई डू अ पॉडकास्ट, आई डू इंस्टा लाइव, जिसको मुझसे जो सवाल पूछना है पूछे. बट अगर आप मतलब फालतू की गालियां दोगे, अपनी इनसिक्योरिटीज मुझ पे आगे निकालोगे, तो यार आई मीन देयर इज ओनली सो मच टाइम आई हैव इन द डे. I would say I don't understand why you get like this immense hate on Twitter. यार मैंने भी किए ना थोड़े चुत यहाँ पे, तो मतलब मैं किस मुंह से यहाँ बैठा हूँ कि मैं कोई मतलब फरिश्ता तो नहीं हूँ. इन टर्म्स आई मीन आई हैव टू बी वेरी क्लियर, आई सपोर्ट LGBTQ राइट्स, आई हैव सपोर्टेड देम फॉर इयर्स. आई मीन मेरी कोई दो राय नहीं है उस बारे में. आई मीन आई एम वेरी क्लियर. 2014 का मेरा आर्टिकल है इन सपोर्ट, वेयर नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट. पाकिस्तान में प्रोबेबली पहला पॉडकास्ट का नाम आर्टिकल. क्या है? मैं पॉडकास्ट से देखा यार, पॉडकास्ट का नाम क्या है? मैंने पॉडकास्ट सुना है, आई वाज लिसनिंग टू दैट ट्रांसलेटेड पॉडकास्ट. कैंची क्यों उठाई हुई है हाथ में? आर यू ओके बिलहान? ऐसा तो नहीं कि आप भी किसी के चौथे मियाँ बनने वाले? अब बोलो अब बोलो. तो या अगर ट्विटर पे यार मैंने, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग, बट आई डिड दिस थिंग कॉल्ड समंथा जेरी. अगर आपको पता है कि सिंथिया डी रिची हैं ट्विटर पे. देयर लॉट ऑफ, आई मीन लाइक लेट्स नॉट इंडिविजुअलाइज हर, देयर लॉट ऑफ दीज वाइट सेवियर जो पाकिस्तान आते हैं, राइट, जो 2 दिन हुए पाकिस्तान आके, उनको लगता है मैं पाकिस्तान का सब मसले समझ में आ गए हैं. And they come from a place of immense privilege, right? For instance, Cynthia Di Ricci went to Peshawar and took a picture cycling and said, why don't women do more for their own liberation? आप एक गोरी औरत हैं जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में आकर एक तस्वीर खिंचाने पेशावर की सड़क पे साइकिल चला रही हैं. For you to say your experience is the same as a woman who lives in Peshawar and is as simple as for her to get out of the house, buy a cycle and you know ride it down the streets of Peshawar without any repercussion, it's tone deaf at best what you're saying. Yeah. तो ये बात करना इतनी अहमकाना है, और इतने सारे लोग हैं जो बस पाकिस्तान आते हैं और उनको लगता है हमें सारे मसले समझ में आ गए, राइट? आवर एक्सपीरियंस इज द सेम एज अ कॉमन पाकिस्तानी के यार मेरे साथ अगर ये हो रहा है. एंड Pakistan is a great country, we should absolutely promote tourism. Our north is as beautiful as any place in the world, but if you visited Pakistan under a security protocol, doesn't mean you have a right to say that people who claim that they have legitimate issues are wrong, right? अगर आप
नाम किसी का भी नहीं लूंगा, बट चलें आप जॉन सारा निकोल जो भी हैं, आप बलूचिस्तान जाके कहती हैं कि देखो एम लोग कहते हैं बलूचिस्तान में मसले हैं, कितना सेफ है कितना साफ है, ये बात हमारी अपनी है तो थोड़ी समझना मुश्किल होती है. बट इफ यू टॉक अबाउट थाईलैंड, राइट, I've been to Thailand. It's beautiful, the beaches are great, no issues. But there are a lot of fundamental issues. If you talk to Thai people, there are a lot of issues which go on in that country which I wasn't privy to as a tourist, right? So if somebody asks me, I'll say Thailand's absolutely safe, there are no issues. What are you talking about? Because I don't live there. या चाइना की भी अगर बात कर लें, इवन नॉर्थ कोरिया कुछ लोग जाते हैं और कहते हैं नहीं बहुत अच्छी बात है, सारा वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है. तो उसको मैंने सैटराइज किया. आई मेड एन अकाउंट कॉल्ड समैंथा ए जेरी. उन्होंने एक ट्वीट की कि आई एम अ काउच सर्फर लुकिंग टू कम टू पाकिस्तान, विल एनीबडी होस्ट मी. तो सब आ गए डीएम में कि जी हमारा सोफ़ा खुला है, आ जाएं समैंथा, हम आपके घर रहे हैं इधर उधर. तो अ लॉट ऑफ रियली इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन ट्विटर, मतलब व्लॉगर्स हो गए, एक one of Pakistan's biggest family message saying we have these private Islamabad parties, would love for you to come. एक शादीशुदा मर्द हैं वो आए, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. I made a lot of people on Twitter look like idiots through that. फिर मैंने एक Tinder prank किया था where I pretended to be a girl on Tinder, and a lot of men who without telling their wives were on Tinder or were cheating, मैंने उन सबको बोला आप Cloud9 आ जाएं. तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई. आई मीन आई ब्लर्ड देयर फेसेस कि ये 35 मर्द Cloud9 आए थे शाजिया से मिलने के लिए. उनमें काफ़ी लोग थे, एक मीडिया हाउस के हेड थे उनमें. सो अ लॉट ऑफ इट इज दैट. सम ऑफ इट इज के आई क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट अ लॉट एंड आई हैव डन इट इन द पास्ट. जब पीपीपी गवर्नमेंट में थी तब मैं पीपीपी क्रिटिसाइज करता था, जब पीएमएल थी मैं पीएमएल करता था, पीटीआई है तो मैं पीटीआई करता हूँ. मेरा कोई दीन मान नहीं है, मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज से नफरत करता हूँ. इट्स नॉट लाइक आई सपोर्ट एनी ऑफ देम, बट इफ यू आर इन गवर्नमेंट यू विल गेट क्रिटिसाइज. तो पीटीआई ट्विटर को काफ़ी मुझसे नफरत है, उस वजह से थोड़ी नफरत वहाँ से आ जाती है. दी जनरल ट्रोलिंग जो है ना यार, सो आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, which means it's a very particular professional art कि मैं stand up comedy करता हूँ. A lot of people assume, ये एक assumption ये है कि ये तो हमारा मस्करा है, he's there for our entertainment, right? कि ये ट्विटर पे फनी बातें क्यों नहीं कर रहा. You're a comedian, stay in your lane. How dare you talk about politics? They don't know I studied from LUMS, I did my BA, I did my LLB, I'm a Fulbright scholar, I did my masters in theater. So they think ये मस्करा है. So a lot of people use that to insult me. You're a comedian, stay in your lane. Why? How dare you talk about something smart? Just entertain us. Or why are you not being funny? Right? I'm a stand-up comedian. If you pay me to do a show, I'll be funny, and I still might fail. I still might not be funny, might not do a good job because that's my profession, right? But I'm allowed to breathe. Like अगर आप लोग आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप कहते नहीं जी 2 घंटे तुमने जोक सुनाने हैं और हमने सुनना है, I'd be like यार, I'm a human being, right? I can have a conversation with people. I can exist. तो इसी तरह कभी मुझे casually भी लोग मिलते हैं ना, you're a comedian, tell me a joke. I hate that. It's like को डॉक्टर मिले, you're like हाँ नहीं मेरा ये देख लें सर, हर्निया हुआ है, मेरे पकड़ के प्लीज देख लें खुदा के वास्ते कि मुझे हर्निया हुआ है सर. You're not going to do that, but for some reason you will. तो ये वजह है. बी वजह ये कि मैंने बहुत ही एक रोड लेस ट्रैवल्ड बाय लिया है पाकिस्तान में. I think a lot of people want to be comedians. A lot of people would like to leave their dead and hateful jobs and be a comedian. So when you tweet something like I'm funnier than Shehzad Ghaiyas, or if you tweet something like everybody who follows Shehzad Ghaiyas comedy deserves cancer, you're really not saying anything against me. You don't hate me. You hate me for what I represent. You're like, how dare this guy live this life in Pakistan when my life may not be as happy, or my life may not be as good. Or if you think I am better than you, like I am funnier than him, why does he get attention? So a lot of it is that it's just पाकिस्तान में ना कोई इंसान आगे जा रहा हो तो हमें उससे नफरत शुरू हो जाती है कि इसकी टांग खींच के उसको पीछे लेकर आओ. How dare he go ahead of us? मेरी गलती ये है कि मैं जी ट्रोल्स से एंगेज बहुत करता हूँ और रिस्पॉन्ड बहुत करता हूँ, तो वो फिर लोगों को और इम्पेटस मिल जाता है कि हाँ यार इसने रिस्पॉन्ड किया, राइट? अगर आप लोग भी अभी 17-18 साल के हैं, मैं जब लम्स में था एक दफ़ा अली ज़फ़र आया, ठीक है, क्रिकेट खेलने. अब मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि अली ज़फ़र कैंसल्ड है और सेक्सुअल हरासर एलिज्ड हैं, तो इसीलिए उनका मजाक उड़ाना ज़रा कोशर है. तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट
एंड आई वाज लाइक यू नो बाउंड्री रोप से कोई सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच था, मैं ऐसे ही उसको तंग कर रहा था. आई थिंक इट वाज बिकॉज ही इज शॉर्ट. आई थिंक आई वाज मेकिंग फन ऑफ दैट कि बाउंसर डालो बाउंसर डालो बाउंसर डालो. तो उसने फिर कोई छक्का वक्का मारा और उसने ना मुझे यूं बैट दिखाया अंदर से कि बैट अंदर ले ले. In my group, who won that battle? I won that battle, right? Because he's Ali Zafar. He's a celebrity. He's come to Lums to play a cricket match. मैं boundary rope से I got him to respond to me. अगर मैं क्रिकेट मैच पे जाता हूँ और बाउंड्री पे अहमद शहजाद खड़ा है and I'm like अहमद शहजाद selfie और वो मुड़ के मुझे गाली दे, I won. As a troll, I have won. तो जो इंसान ट्रोल करता है ना ट्विटर पे, अगर दूसरा इंसान उसको रिस्पॉन्ड कर दे, दैट ट्रोल इज ऑलरेडी वन. आप हार गए हो, देयर इज नो विनिंग. अभी बेचारे अली सेठी आल्सो मेड दिस मिस्टेक ऑफ रिस्पोंडिंग टू अ कपल ऑफ ट्रोल्स. ही लॉस्ट. द मोमेंट यू रिस्पॉन्ड यू लूज. मुझे पता नहीं क्यों शौक है रिस्पॉन्ड करने का, फटे लेने का. रिस्पॉन्ड ही कर लेता. अली सेठी ने कम बैक भी तो इतना मारा. बस वो करना नहीं चाहिए. वो बहुत बड़ी गलती है. तो ये काफ़ी वजूहत हैं. हो सकता है कोई जेन्युइनली भी हेट करता हो. अगेन आई एम हियर राइट यार. अगर किसी और का कोई प्लेटफॉर्म है, कोई और पॉडकास्ट है, आपने जेन्युइन बात करनी है, बुला लो. आई विल कम एंड टॉक. आई हैव नो इश्यूज टॉकिंग अबाउट एनीथिंग विद एनीवन. बट अगर आपका रोज का काम गाली देना है, मैं पागल हूँ, मैं रोज आपकी गालियां सुनूं. मतलब इतना फालतू टाइम थोड़ी है मेरे पास. ब्लॉक करूंगा डायरेक्ट. Thoughts on cancel culture. Thoughts on cancel culture. मैं बताता हूँ. कह रहे थॉट्स ऑन कैंसिल कल्चर. थॉट्स ऑन कैंसिल कल्चर. आई थिंक शॉर्ट ऑफ क्राइम्स, देखो आप सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल वायलेंस, मर्डर, डोमेस्टिक अब्यूज, क्राइम्स जो है ना, दैट मेक सेंस टू मी कि यार ठीक है आप कैंसिल करें. या इफ़ यू आर समबडी हु इज प्रमोटिंग हेट स्पीच, राइट, कि अगर मैं जाके कहूँ कि हर सिटी स्कूल रावी के लड़के का मर्डर कर दो, हर लम्स का बंदा काफिर है, इसको मारो, इस तरह की हेट स्पीच अगर मैं कर रहा हूँ, श्योर कैंसिल दैट पर्सन बिकॉज इट्स डेंजरस. पाकिस्तान जैसे मुल्क में वाकई को जाके किसी को मार देगा. हेट स्पीच ऑल्सो कम्स अंडर क्राइम. Short of crimes, I think you really got to give people some space. Not that they don't. I agree. That don't make mistakes, right? अभी इस पे मुझे बहुत गालियाँ आई थी. अभी मुझे एक्चुअली 2 दफ़ा गालियाँ भी रिसेंटली आई हैं. लम्स की एक लड़की है, उसने कुछ होमोफोबिक बात कर दी थी, राइट? एंड आई नो दैट गर्ल, सो आई वाज लाइक लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन. तो मैंने उसके साथ इंस्टा लाइव किया. आई वाज लाइक यार मतलब ये वजह है जिस वजह से ये बात गलत है. People were like, how dare you give her a platform? I'm like, she's 23. And her position was, yes, I was being attacked. This is where I'm coming from. What I said was completely wrong. I absolutely acknowledge that. I would not ever say that again. एक 23 साल की लड़की और क्या करे? Like, either जिस तरह क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है ना कि let he who has never sinned throw the first stone. Either you are that, where you can cancel everybody because you are a saint person who's never learned who's never had to unlearn a lot of toxic behavior, especially in a country like Pakistan. आप बहुत टॉक्सिसिटी में बड़े होते हो. और मैंने भी बचपन में यार ज़ाहिरी बात है रेशियल स्लर्स किए हैं. स्टार्टिंग ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग कॉमेडी बिकॉज आई ग्रू अप ऑन दीज पठान एंड मेमन जोक्स, इट शोड इन माई कॉमेडी. I did shows I did jokes which were racially charged or which probably mocked a certain ethnicity because उन मजाक के साथ मैं बड़ा हुआ था. Does that mean कि कोई मेरी 2010 की एक क्लिप निकाले कि इसने पठान के बारे में जोक किया था, now he's super unwoke, तो इसको कैंसिल कर दें? Are you saying that people can't grow in 10 years? Are you not giving them that space? What do you want? The idea is, what do you want? If you want to build a safer culture, if you want to build a safer space for everybody, then you have to give them room to learn and acknowledge. वरना आपकी जो कैंप्स हैं वो ज़्यादा ही दूर दूर होते जाएंगे ना. If you're not even going to have a conversation. So saying something problematic is wrong. But then you have that conversation if a person acknowledges and shows changed behavior. ये नहीं कि जी जिस तरह आमिर लियाकत है हर रोज कोई बात करो, सॉरी बोलो, फिर चल दो. तो ये नहीं होना चाहिए. बिग फैन ऑफ दिस कैंसिल कल्चर. बस मैं ये कहता हूँ कि भाई इस तरह ना एक पॉइंट पे आके बंदे की ना फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाती है. बंदा बोलेगा वही जो लोगों को सुनना है, लोग बंदे का बोलेगा ही वही लोग पसंद करते हैं.
ठीक है, अपना ओपिनियन जाया हो जाता है बंदे का. देखो, your freedom of speech doesn't mean you're free from any criticism of that speech, right? तो अब अगर हाँ. कोई जी ट्वीट करता है जी feminism is cancer, legally that person can say that it's problematic, it's wrong, it's toxic AF, but you can unpack that, you can criticize that. Now if a person continues to say that that person's problematic and maybe I don't know what the solution is, deserves conversation or therapy or something, but you also have to see where they're coming from, right? Abhi Lums mein, I don't know if you guys saw that Dank Pana एक ग्रुप बना था कुछ टाइम पहले. डैंक पना फेसबुक पे मुझे वैसे पता है डैंक हाँ पना. हाँ हाँ, तो वो एक डैंक पना फीचरिंग लम्स था. इट्स वेरी सिमिलर टू द बॉयज लॉकर रूम टॉक. सम ऑफ द जोक्स इन दैट absolutely promote rape culture. Absolutely women will not be comfortable being around men who post that. देखो कुछ, सॉरी ट्रिगर वार्निंग, सेक्सुअल असॉल्ट, तो वो एक isolated bubble में नहीं होता. It has to do a lot with the culture around it, right? If a lot of people are okay with saying things like boys will be boys और लड़कियों को नहीं, अच्छा चलो यार वो तो हैं लोग ऐसे, वो तो ऐसे करेंगे. मुझे किसी ने एक दफ़ा बोला कि सर गोश्त जब बाहर आएगा तो चीलें उस पर अटैक तो करेंगी. When you say things like that, you embolden people who will commit sexual assault. You may not go out and do it, but if you continue blaming women for it, you create the culture which allows these things to happen. तो इस तरह के jokes absolutely criminal, चलो maybe crimes नहीं है, but they do promote rape culture. They do make women feel unsafe. But on the flip side, 600 लोग उस ग्रुप में थे, and somebody said all 600 of them should be suspended from Lums, and I was like, wait a minute, okay, admin को करो आप, meme कोई बनाता है popular आप करो, but 600 लोग हैं अब इस ग्रुप में, 600 लड़के हैं. Some of them are NOPs. कोई उठकर आया है कहीं से, उसको जब पता ही नहीं, ठीक है, उसको जब समझ ही नहीं है, उसको एक 18 साल उसके माँ बाप ने बोला है कि नहीं जी मर्द तो मिजाजी खुदा है, मर्द जो बोले, औरत अगर घर से बाहर जाए तो उसका कत्ल कर दो, ऑनर है, हमारी इज्जत है. आप एक्सपेक्ट करते हैं वो इंसान लम्स में टपके तो वो फौरन जी वोक, जिस तरह लम्स में आती है उसकी आंखें खुल जाए. Yes, the university has a duty. Yes, individuals have a duty to educate, to make that person unlearn, but at least have those avenues and have those safe spaces. You can't just take something that you've learned through either your education or your privilege and transpose that onto the world and expect everybody to conform. And if you do want everybody to conform, the only way is learning and conversation. And I think cancel culture precludes all of that. Another really, really problematic thing about cancel culture is that the gatekeepers of cancel culture sometimes are the most privileged people. If you have a liberal arts education from a university which is either elite or is considered elite at the very least, you have to acknowledge your own privilege. You have to acknowledge that you were afforded certain opportunities which made you learn these things. These things are absolutely correct and these things should be universal, but you are standing on that ivory tower due to certain privileges that were afforded to you. So if you want to create a safe space where other people are welcome, you need to put your hand down and pull them up. Not push other people down to make yourself feel better. Unfortunately, a lot of cancel culture has become about people feeling better about themselves. Oh, this person is famous. Oh, this person is a comedian, but I am better than this person because, oh, look, this is what this person did and this is why I think this is problematic, which makes me better than this person. And now this woke and out woke, नहीं, ये आपको woke लगता है, मैं इससे ज़्यादा woke हूँ. नहीं, तू क्या woke है, मैं उससे ज़्यादा woke हूँ. It's become very toxic. So maybe it started off in earnest, but at this point, people who are gatekeeping this and people who are perpetuating this need to take a hard look at themselves to figure out if they have become what they hated. Sorry यार, लंबा भाषण हो गया ना? I agree. Okay. I'm also hoping a lot of like people your age listen to this, so I'm also like saying things which I think would be useful for them. मेरा सिलेक्शन बहुत बुरा आ रहा है, मेरे को अच्छे आवाज आई नहीं है, वो उस तरह आ रही है. लाइक होप के वीडियो में सही आ रही है. वीडियो में सही आ रही है बिकॉज़ मुझे सारी सही आई है.
मुझे सारे हाँ, सही बट तो व्हाट इज लाइक आप लोगों क्या? की एज में क्या है, व्हाट इज लाइक वेयर इज क्या द चीज? माइंड्स ऑफ पीपल योर एज एट? आजकल लाइक मैं अपनी बात करूं तो मेरी एज में लाइक बच्चे उस मीम वाली फेज में आते हैं, तो लाइक स्टार्ट मेकिंग मीम्स, ठीक है, और इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू बी फनी किसी भी वो इशू पे रेलेवेंस उसको मीम बना सेशन देते हैं, ठीक है। पीछे भागते होते हैं, क्या कह रहे हो बिलाल? रेलेवेंस और एप्रिसिएशन के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, हाँ, एंड थ्रू डिफरेंट मीन्स। कुछ बच्चे लेके रेलिवेंट हो रहे हैं, कुछ मीम्स बना के रेलिवेंट हो रहे हैं, कुछ अच्छे नंबर लेके रेलिवेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, कुछ अच्छी दोस्तों पे बैठ के उस बंदे के साथ दोस्ती करके उसके साथ तस्वीर खिंचवा के रेलिवेंट हो रहे हैं, कुछ वीडियोस बना के रेलिवेंट हो रहे हैं। रेलिवेंस के पीछे भाग रहे हैं rather than the purpose and rather than passion, satisfaction or anything else. and That's why they are more. लाइक डैंक मीम क्या है? Yeah? आई विल से द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग कि यार मैं सबसे लाइक बुरा जोक बनाऊं कि मैं सबसे डैंक हूं। ठीक है, अभी किसी ने रिसेंटली पोस्ट किया था यार, दिस इज गाय कॉल्ड सैड कुरैशी, जिसने आई थिंक ही आल्सो किल्ड अ किटन and made a video. ये torture videos जो डाला था। Yeah, I mean, so now he's made an APS joke. He's made a joke about Zainab. मतलब you're just doing it to seem edgy, ना? कि यार ओ देख मैं कितना डैंक हूँ, I'm making an APS. Why? Like आपको पता है कि you're going to hurt just millions. This might be like hard to swallow, but and you won't even believe this, लेकिन मेरा एक स्कूल का ग्रुप है, और स्कूल के ग्रुप में कल मैं देख रहा था कि एक मेरे क्लास फेलो ने a joke on the boys locker room वो मीम बना के भेजी हुई है, and I like just looked at it, I was like यार क्या बोलूं मैं इसको आगे से, मतलब मैं बोल भी क्या सकता हूँ, आगे से बच्चे हा हा रिएक्ट कर रहे हैं, बंदा आगे से इन दैट स्पेस अगर उस बंदे को इफ आई कॉल दैट पर्सन आउट, मुझे बैश किया जाएगा कि तुम्हें नहीं समझ लग रही एंड ब्ला 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 एंड बस बंदा क्या बोले आगे से। तो फिर what's more dank, right? What's more dank, to stand up for what you believe in and say what's right, or to be problematic and edgy just for the sake of peer pressure? अभी मैंने एक मैंगो बाज के साथ इंस्टा लाइव किया, उसमें ना मैंगो बाज कुछ some people just hate मैंगो बाज। Yeah. तो एक बॉयज ने ग्रुप बना के अटैक कर दिया मैंगो बाज। आई सेड ये इसी तरह, आई वाज लाइक मोटिवेशनल शहजाद, लेट्स टॉक टू देम यार, if you want to be a man, what does it mean to be a man, right? कि ये नहीं करनी प्रॉब्लमैटिक और डैंग बातें just for the sake of it। उसके बाद 3 लोगों ने एक इंस्टा ग्रुप बना के मुझे मैसेज किया जिसमें मुझे ट्रोल कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक इंसान ने इंडिविजुअली मुझे मैसेज किया, या आई डोंट नो अगर उसमें से था या किसी और में से था, कि यू नो व्हाट यू सेड एंड यू रिकमेंडेड समथिंग, कैन यू प्लीज गाइड मी टुवर्ड्स दैट। जब एक इंडिविजुअल से आप बात करें ना, आप रियलाइज करोगे कि यार सबके शौक और डिजायर्स बड़ी सिमिलर होती हैं कि मैं फील वेलकम करूं, मुझे मेरे दोस्तों में रिस्पेक्ट हो या प्यार मिले। तो इफ द पीयर प्रेशर इज सच, जिस तरह आप बात कर रहे हो कि मैंने अगर मीम पे नहीं हंसा तो लोग मुझे जज करेंगे, सो आई एम नॉट गोइंग टू। So maybe a lot of other people also didn't find it funny, but they had to say haha just to feel accepted. Yeah. ये peer pressure बन जाता है और फिर उस culture को बदलने की ज़रूरत है। Maybe every individual in that culture is not a terrible person, but just by virtue of value that we've assigned as a society to this behavior in that culture, I think उसको reassess करने की ज़रूरत है कि हम value किस चीज़ को देते हैं। Definitely. Let's talk a bit about professional stuff now. और कोई नहीं है कंट्रोवर्शियल सवाल? जिन्होंने तुम्हें बोला था कि शहजाद से कोई सवाल पूछे तो ब्लॉक कर देता है, उनको बोलो बता भी दो ताकि हम पूछ लें इससे। मौका है, जो पूछना है कंट्रोवर्शियल पूछ लो भाई। वो क्या सीन था? खुला सीन है इन्फ्लुएंसर्स वगैरह वाला। किसका? इन्फ्लुएंसर्स वगैरह वाला सीन। क्या इन्फ्लुएंसर वाला सीन यार? अच्छा, सो इन्फ्लुएंसर्स वाला सीन ये था दैट आई वाज कमिंग आउट विद अ स्पेशल टैपमैट पर एक एजेंसी को किया हायर कि जी आप इन्फ्लुएंसर्स करें हायर, यू नो, टू प्रमोट इट जनरल बिहेवियर। पता चला कि जी एक ट्रोल फार्म है
वो कैंपेन चला रहे हैं मेरे अगेंस्ट। अब तक खैर मुझे पता है कौन चला रहा है, आई कांट नेम द पर्सन। कौन चला रहा है? हाउ डू यू नो कौन चला रहा है? Because I'm pretty active on Twitter. तो खैर नहीं, उसके बियॉन्ड भी यार, एक तो ट्विटर पे कुछ ग्रुप्स हैं ना कि यार सर्टेन पीपल जो 3-4 दोस्त हैं, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। दिस वाज इवन सरप्राइजिंग टू मी बिकॉज दिस वाज फ्रॉम कॉलीग। तो आई वाज लाइक यार ये why have you turned professional jealousy into this, right? And khair, and it's also these 17, 18, 19-year-old kids. I'm like यार I just think it's sad. पर क्योंकि क्वारंटीन में हम सारे थोड़े स्टूपिड हो गए हैं, देयर वाज अ स्ट्रैटेजी कि यार अगर नेगेटिव चल ही रहा है, व्हाई नॉट यूज दैट नेगेटिव एंड गेट इट टू ट्रेंड। यार चलो 2 कैंपेन्स तो चल ही रही हैं, तीसरी हम भी चला देते हैं, तो जब 3 कैंपेन्स चलेंगी तो ट्रेंड हो जाएगा। गेट इट? इफ यू आर ऑलरेडी गेटिंग पेड टू ट्रोल मी, और कुछ लोग फिर जी साफ गयास कंजर है, which was the bad word, which I don't think is a bad word. अगर आप कंजर की एटमोलॉजी में जाएं तो कंजर एक्चुअली एक फैमिली है जो शाही मोहल्ला में रहती है। एंड व्हेन आई डिड अ प्ले इन 2010 विद शहनाज शेख, उन्होंने मुझे पहले दिन आके बोला था कि थिएटर का पहला असूल है असी तह ही कंजरा, वेयर दैट एज अ badge of honor and don't let anybody shame you into it, which is very similar to what Tyrion Lannister told Jon Snow about him being a bastard. तो मैं तो बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि मैं हूँ ही कंजर। अच्छा जी, अब उसके साथ एक क्लिप थी वेयर आई डू दिस जोक, वेयर द जोक इज दैट सिटी स्कूल में बहुत आयरॉनिक होमोफोबिया होता था। मुझे लड़के आके कहते थे कि आइंदा मुझे अगर गे बोला है तो तेरी गांड मार दूंगा। Now that clip was supposed to be like leaked online by saying, is this promoting homosexuality? What is this LGBTQ? So a lot of people said कि this is anti-LGBTQ. Absolutely not. I think इसी वजह से आप लोगों ने भी सवाल पूछा था, मैं multiple times पहले से बोलता आ रहा हूँ, it's not like ये। The idea was to subvert that, right? Even with the dirty comedy show, I subvert a lot. I use a lot of terms that boys use. ठीक है, like मैं इस तरह के joke मैं तो कर चुका हूँ, अब गालियाँ दे चुका हूँ, बट मैं एकेडमिकली दे रहा हूँ, बट आई कैन यूज बैड वर्ड्स, और कैन आई नॉट? अब तो मैं कर चुका हूँ। तो एक और उसमें मैं शो में जोक भी सुनाता हूँ कि यू नो लॉट टाइम्स पीपल से सिटी स्कूल में कि यार एसएन क्रिकेट खेलने आ रहा है, नहीं यार माँ चौधा रहा है। क्यों हो सकता है एसएन का क्रिकेट खेलने का मूड ना हो, राइट? नाउ आई एम यूजिंग अ वर्ड विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, but I'm using it to draw attention to how strange it is that we use this so casually. तो आइडिया वही था कि यार सबवर्ट करके कॉन्वर्जेशन शुरू करें, ठीक है। मसला ये था कि वो जो ऑलरेडी ट्विटर लॉबी मेरे अगेंस्ट है, उन्होंने उसको एंटी LGBTQ भी डाल दिया। फनली इनफ सम पीपल हु, इफ यू आर ऑन ट्विटर यू नो, एक दूसरे को आउट करने के चक्कर में, जेंडर वायलेंस करने के चक्कर में, FIA की एक दूसरे पे फाइलें डाल रहे हैं, दुनिया के प्रॉब्लमैटिक डेंकेस बातें कर दें, उनको मिल गया ये कि जी वोक टर्मिनोलॉजी यूज अगेंस्ट ज़ागियास। इनफैक्ट समबडी ट्वीटेड, इज दिस योर वोक किंग? एंड आई वाज लाइक, मैंने कब कहा मैं वोक किंग हूँ? आई डोंट इवन आइडेंटिफाई एज वोक। आपसे पहले अभी मैं वोक कल्चर की कितनी क्रिटिसिज्म कर चुका हूँ। तो they were like, okay, the right was like, let's use woke terminology against them. So ये हुआ। All that being said, now the problem was, which a friend told me, which I genuinely apologized for, कि the fact that it was clickbaity. Conversation करना ठीक है, use करना ठीक है, but if you're using it to get clicks, and there is a corporate commercial element to that, then it's highly problematic and it's wrong. And I was like, ये बिल्कुल बात सही है, और ये मेरी गलती है कि यार अगर उसके पीछे ये नहीं होता कि यू नो क्लिक फॉर हिट्स, कि ये कंट्रोवर्सी होगी तो इससे हिट्स बनेगी, तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद इट। बट द फैक्ट दैट दैट वाज देयर वाज इनकरेक्ट. And the first time it was pitched to me by the agency, I had said no, I should have had more of a spine. I should have taken a stand and made sure it didn't happen.
I was part of it. I was complicit in it. I knew I signed off on it. So I take 100% responsibility for that. And I genuinely want to apologize. And I'm trying to do as much as I could to make up for that. And वो मेरी गलती है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है ना. पहली चीज़ ही यही थी. पहली चीज़ इनफैक्ट मुझे बोला गया कि नहीं हमारे पास पूरा है डेटाबेस, हम इसको, आई वाज लाइक नहीं भाई, आई विल ओन अप टू इट, आई विल अपोलोजाइज, बिकॉज that's what you do, that's what you learn. अगर इस पर लोग बोलेंगे नहीं जी कैंसिल इट, that's fine. If people are like okay, saying this is not enough, we're going to see how you behave for the next 10 years, that's also fine, right? I mean when I say कि apology should come with change behavior, तो मेरा behavior अब अच्छा होना चाहिए. एक आर्टिस्ट है, बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा. शी इज एक्चुअली द बेस्ट डिजिटल आर्टिस्ट, शैज़ल मलिक. Yeah, I know about it. Yeah. So she was like, if John Oliver is a voice that we listen to, and then बाद में पता चले कि जॉन ऑलिवर खुद लॉबियों से पैसे देता है, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है. एंड ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. तो अगर सांप सीढ़ी पे मैं कुछ 70-80 पे था, सांप ने मुझे डस दिया, मैं बाद में 2 पे हूँ, तो सही है. I will have to work. If people think I've lost credibility because of this, I will work and build my credibility. And to be honest with you यार, जो ट्विटर ट्रोल्स की तुम लोग बात कर रहे हो, वो इतना ज़्यादा होता है ना, तो आप भी थोड़े पागल हो जाते हो. सो मैंने ये क्लिक बेटी कैंपेन को बोला कि चलो हेट मिल ही रही है तो इसको यूटिलाइज कर लें और अपने खिलाफ हेट कर लें. बहुत स्टूपिड हरकत थी. बट जब इतनी हेट मिलती है तो आपका भी दिमाग चले what's good is that you like admit your fault and admit your गलती and you like publicly apologize for it. Yeah man, I mean I have no qualms. I'm जी बिलाल, आप वो जूम क्लास की तरह, you're like sir can I say something? अच्छा चलो छोड़ो. Tell me about TVP और जो Bilal, are you saying something because we can't hear you? बिलाल का ऑडियो नहीं आ रहा यार. हेलो, बहुत कम आ रही है. आ रही है, एक्सट्रीमली कम आ रही है, बहुत कम आ रही है. एक काम करो, माइक को अनप्लग करके प्लग कर दो वापस. Oh, we can hear you now. वो लैपटॉप का ऑडियो था. हाँ बोलो. हेलो. Yes. जी बिलाल. कह रहे थे बिलाल, कुछ कह रहे थे या फिर बंद हो गई ऑडियो. बेचारा यार. Is this just आज हमारी लक खराब है बिलाल, या नहीं हर दफा थोड़ा बहुत मसला होता ही है. आज ही खराब है. जी बिलाल. अच्छा क्या ये रहो सजा, मुझे लग रहा है कि ना नियर फ्यूचर में मैं बहुत कैंसिल होने वाला हूँ और तेरे पॉडकास्ट खराब हो जाना है हमारा. तो कि मेरी बात जो है ना, जब मैं ये कह रहा है कि भाई मिसअंडरस्टूड होता है, तो वहाँ क्या हुआ है, बिलाल को डर लग गया, धंधा खत्म होने लगा. हेलो जी. हाँ बिलाल, हमें आवाज आ रही है तुम्हारी, सब ठीक है. अच्छा बिलाल को सिर्फ अपने बाइसेप्स दिखाने थे पीछे जाकर. ये वो बाइसेप्स तो डोंट मस्ट बी शेम. यस है. व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी इन पाकिस्तान? क्या एक सेकंड लगे तुम्हें ये बात करने में? मुझे लगा पता नहीं क्या इसके दिल की बात खोल के निकलने वाले हैं. मैंने पहले किया 4 किया, मैं थक गया, मैं भाई बस करो, मैंने नहीं कर लिया. नहीं करो, मैंने वो तुम्हारी दिल की आवाज सुननी है बिलाल, मैं बहुत क्यूरियस हूँ. नहीं मैं क्यों कह रहा था कि जिस तरह की बातें होती है मेरी, इस तरह की मेरी ट्वीट्स वगैरह होती हैं, इस तरह की मेरी होती है, वो इनसे ना मतलब जो मेरी सर्कल है या फिर जो मेजोरिटी है उससे बहुत इख्तलाफ वाली बातें होती है मेरी ज़्यादातर. तो आई फील मैं भी ना नियर फ्यूचर में कैंसिल हो जाऊँगा ट्विटर पे, या तो मुझे छोड़ना पड़ेगा या फिर ये ना हसन साहब आपको पॉडकास्ट में थोड़ा सा पॉडकास्ट सही करना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी आपको. देखो ना, पॉडकास्ट पे you're the problematic guy and I'm the unproblematic guy. तो मुझे तो और सपोर्ट मिल रही है. ठीक है, कुरान की आयत है भाई, मेजॉरिटी जो है जहल है. ठीक है, चलते रहो.
यार हर आवाज जो है ना उसको अपने दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए. आई थिंक देखो, फॉर इंस्टेंस आपका घर है, हर इंसान जो सड़क पे बात करेगा आप उसको नहीं बोलोगे अंदर ड्राइंग रूम में आ जाओ. सो व्हाई डू वी ट्रीट आवर ब्रेन्स डिफरेंटली? व्हाई डू वी नॉट ट्रीट आवर ब्रेन्स even as securely as we treat our homes? ट्विटर पे आपको क्या पता कौन कहाँ से आया है, क्या कह रहा है. अगर हर आवाज़ को हम अपने दिमाग में जगह देंगे इक्वल कि यार आई नो आई एम अ गुड पर्सन, लेकिन ट्विटर पे ट्रोल 79 कह रहा है कि शहजाद इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल कैसे हो गई हैं? एंड especially as somebody who struggles with mental health, one thing about us is कि ना, अच्छा बोले, sorry क्या बोले नहीं mental पूछो. health. जी बिलाल आप कंप्लीट मैं कह रहा था कि मैं ना, हमारी वीडियो थी PewDiePie पे ना, मैंने थी एक PewDiePie टीच पे मसले पे, तो उसमें बड़े ज़्यादा इंडियंस जो है ना पढ़ रहे हैं. उसमें कोई 100-200 कमेंट है वीडियो पे और सारे इंडियंस ही है, गाली है. तो वो हेट कमेंट नहीं चढ़ता सर पे. आई एम ट्राइंग टू से पूरी हर एक कमेंट गाली. तो खैर हेट कमेंट डजंट अफेक्ट. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि जो इमेज है ना, हसन बड़ा शौक है कि ना अपनी इमेज अच्छी रखे. तो क्या है ना, मेरी और तेरी इमेज खराब हो जाती है, मुझे दूर है. इमेज की बात नहीं है. I've been on Twitter since I was 13 or something, right? और God damn, I'm so happy I was not on Twitter when I was 13. मैं उसी वक्त कैंसिल हो जाता. I've like grown a lot and मजाक के अलावा ट्विटर का जो परफेक्ट वोक बंदा नहीं होता, मेरे ख्याल से मैं वो बन गया हूँ. ठीक है यार हसन से बड़ा and it isn't कि मैं एक like public approval के लिए ये करता हूँ. My beliefs have just like balanced and matched that. मुझे ये नहीं था कि I just have to like do औरत मार्च और मैंने इसके जाना ही है उसमें या ये करना है blah blah blah. बस I just saw something and मैं सोचा and like over time मेरी beliefs बस मेरे असल के बिलीफ सिस्टम में बहुत फर्क है. मेरा असल के बिलीफ सिस्टम बहुत फर्क है, ठीक है. बट व्हाट आई लाइक इज के इख्तिलाफ होता है लेकिन रिस्पेक्ट एट द एंड ऑफ देयर. रिस्पेक्ट द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट इज देयर के ना. बिलाल की बात ये नहीं कहनी खच मार रहा है, वैसे ये नहीं कहनी खच मार रहा है, तो उसके उसने एक मजे का रहा था. लेकिन एक बात है, बस मुंह पे कहता भाई तू बहुत चुकू है, ट्विटर पे तू बहुत चुकू है, वो मुझसे नहीं होता ये चुकू नहीं. I just मेरा ये एक माइंडसेट है कि ट्विटर पे मैं कुछ देखता हूँ ना, like if I see someone के like कोई अच्छा काम कर रहा है कुछ, I just appreciate the guy. कुछ भी हो जाए, I don't care कि बंदे का एक फॉलोअर हो, मुझे अगर लगा है कि उस बंदे ने कुछ सही लिखा है या कुछ अच्छी तस्वीर डाली है या कुछ, I just appreciate the guy no matter what. और लोगों को लगता है मैं चुपता हूँ. बहुत अच्छी बात है यार. पता है कभी कभी मुझे मैसेजेस आते हैं एंड लॉट ऑफ टाइम्स वही है कि ट्विटर पे आपको 10 लोग गालियां देना तो आपको लगता है पूरी दुनिया को मुझसे नफरत है. बट गाली बहुत आसानी से देते हैं लोग, बहुत सोचते भी नहीं है अगली दफ़ा कि गाली तो देनी है ना. बट अगर कभी भी अप्रिसिएशन आए ना तो इस तरह का आता है कि यू नो इट प्रॉब्ली वुडंट इवन मैटर टू यू बट आई वांट टू से आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम लाइक व्हाई डू यू थिंक इट वुडंट मैटर टू मी, इट मींस द वर्ल्ड फॉर मी. अगर इस तरह के कभी कभी वो मैसेजेस आ जाए ना विच आर नाइस बट यू सी कि ये सोच के आते हैं. दिस पर्सन इज लाइक फॉर मे बी डेज वे क्या बोलूँ नहीं बोलूँ ना बोलूँ. सो लोग अप्रिशिएट दिल खुल के नहीं करते विच दे रियली शुड. उससे पहले जो मैं बात कर रहा था अपने दिमाग और अपने घर की, शुरू में जो हमने बातें की ना कि जी ऑफ कोर्स सुनो, ऑफ कोर्स दिमाग खुला रखो, सीखो, बट वही बात है कि आप अपने घर में किसको आने दे रहे हो. इफ़ यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन एंड यू सी मेरिट, listen to that person, right? But if that person is just toxic, if that person is just hateful, why give them space in your brain? और जो आपने ब्लॉक करने की बात की ना, ये भी एक वजह है यार, मैं ज़्यादा ही वनरेबल हो रहा हूँ कि आई डू स्ट्रगल विद मेंटल हेल्थ. तो मेरे खुद के दिमाग में भी नेगेटिव वॉइसेस हैं, ठीक है. आई स्ट्रगल विद लो सेल्फ एस्टीम. एक चीज़ है कि जी मुझे, एंड आई वर्कड ऑन दिस विद थेरेपी, कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स जो है ना वो how do you overcome it? तो ओवरकम व्हाट? ये वॉइसेस एंड सेल्फ एस्टीम इश्यूज. सो यार देखो दो अलग चीज़ें हैं. पहले जो मैं कह रहा था कि कॉम्प्लीमेंट जो है ना मैं नहीं एक्सेप्ट करता था. सो कोई अगर मुझे बोलेगा ना, एंड मैं थेरेपिस्ट ने थोड़ा मुझे ट्रिक किया, लाइक
she used to say, okay, oh, you know, you look good today. And I'd be like, oh, it's a nice shirt. Like, you look good today. I'd be like, it's good lighting. And then after months, one day she was like, you look good today. And I was like, thanks. And she's like, you know, this is the first time you've accepted a compliment. I'm like, what? She's like, हाँ, for months I've been tracking every few weeks I'll give you a compliment and तुम react कैसे करते हो. This is the first time where you've accepted it without deflecting it कि नहीं ये shirt थी, ये lighting थी. And she's like, do you see this progress? I was like, shit, मैंने तो सोचा भी नहीं था. तो मुझे अगर कोई भी compliment करे ना तो वो मेरे सी पे नहीं होता, मुझसे नहीं होता. तो ये for therapist had to teach me how to accept a compliment. Like for instance, अभी भी एक तो मेरा वो comedian भी बाहर आ जाता है, but I don't understand how you say thanks. Like मुझे अभी भी ज़रा strange लगता है if somebody comes and says, oh you know you look great and you're like thanks. मतलब ये क्या जवाब है यार, कुछ तो बोलो, मतलब thanks क्या होता है. Or at least be like you look good or something. Just thanks. I can't accept thanks. I can't be like yes I look good. तो जो voices in your head वाली बात है, how I overcame that is realizing that certain times some voices in your head lie to you as well. So if there's a voice in my head which says, oh Shazad, you're nothing, or you're terrible, that voice may also be lying to me, right? मैं अपने brain को भी बोल सकता हूँ कि हाँ तू बकवास कर रहा है. I know this to be true. Or if you're sitting with your best friend and sir ख्याल आ जाए कि oh he hates you, no, why? Like there is no basis for that voice. Now the problem is when you're on Twitter, right, it's like a million voices. और आपको समझ में भी नहीं आती कि इनमें से कौन सी आवाज़ आपके दिमाग के अंदर कब चली जाए. तो वो दूसरा इंसान तो आपको पता भी नहीं है क्यों ट्वीट कर रहा है. एंड यू नो इट्स सेइंग दैट इज़ वेरी ईजी कि कोई पाकिस्तान में आपको पता है डोमेस्टिक अब्यूज़ है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, एक कुछ 14 साल का बच्चा है, उसके माँ बाप लड़ रहे हैं, उसको मार पड़ रही है, वो ट्विटर पे जाके क्या करेगा, गालियाँ ही देगा ना और लोगों को. यू डोंट सी वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम, यू डोंट अंडरस्टैंड कि जो सारे ट्रोल्स हैं इनकी खुद की ज़िंदगी क्या है. अगर हम इंसेल कल्चर की बात करते हैं, a lot of that incel culture is fueled from these insecurities that I will never find love, so let me send out hate into the world. Involuntary celibacy. It's not voluntary celibacy, it's involuntary celibacy. I will never be wanted by a woman, so I will hate all women. That's the logic, right? So जो लोग hate परपेचुएट करते हैं और अटैक करते हैं उनकी ज़िंदगी यहाँ काफ़ी ख़राब है. बट आपको तो नहीं पता वो इंसान इसलिए कर रहा है. तो जब आपको कुछ कहता है वो दिमाग में आपके रह जाती है बात, और वो फिर अगर आप उससे डील ना करें, उससे बात ना करें, वो ग्रो करती रहती है कहीं ना कहीं. And then if you let enough of these voices come into your own head, your own voice is diminished. You can't hear yourself. You're hearing all these voices and you start thinking Twitter is the world. Very, very important thing to do for people who get hate on Twitter is disconnect. I think disconnecting really helped, getting off Twitter for 2-3 days, being like, नहीं यार मैं बाहर जाऊँ, लोग नॉर्मल हैं, ऐसे नहीं हर कोई मुझे मारने आ रहे हैं. सोशल मीडिया मेक्स यू थिंक एवरीबडी हेट्स यू एंड यू इन पर्टिकुलर बिकॉज यू आर द स्टार ऑफ योर ओन प्रोफाइल. अगर आपकी फेसबुक है, आपका ट्विटर है, आप उसके हीरो हैं, आप उसके स्टार हैं, तो जो आपको अटैक कर रहा है वो आपको अटैक कर रहा है, या जो आपको लव कर रहा है वो आपको कर रहा है. लो सेल्फ इस्टीम जो है उसका मसला ये है कि हमने इसका काम किसी और को दे दिया. हम अपनी सेल्फ इस्टीम दूसरों पे रिलायंट करते हैं कि यार वाई वुड आई फील गुड टुडे, आई गॉट इनफ लाइक्स. आप ये पॉडकास्ट अपलोड करेंगे, इस पे जी लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, यू विल फील गुड. ठीक है, आपकी कोई इंस्टाग्राम पिक्चर आप डालते हैं, यू गेट लाइक्स, यू फील गुड. हाँ, बट हर चीज मॉडरेशन में ठीक है. द प्रॉब्लम इज जब आप अपनी सेल्फ इस्टीम ना औरों के हाथ में दे देते हैं या अपनी वैलिडेशन दूसरों पर रिलायंट करते हैं, you stop making your own. It's the same like any other drug, like dopamine है. अगर मैं दवाइयाँ लेता हूँ कि जी मेरा डोपामीन रिलीज आए, या ड्रग्स लेता हूँ, माई ब्रेन विल बी लाइक वो ड्रग्स आते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है, हमें खुद रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है. तो उसी तरह जब वैलिडेशन मेरे ब्रेन को पता है कि आई डोंट नीड टू सेल्फ वैलिडेट माई सेल्फ, आई डोंट नीड सेल्फ लव, बिकॉज व्हेन आई ओपन दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड आई गेट लाइक्स एंड शेयर्स, दैट्स द क्यू फॉर माई ब्रेन, राइट. हैं तो हम वो पैवलॉव के कुत्ते कि जी घंटी बजी इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन की तो वी स्टार्ट सैलिवेटिंग कि वैलिडेशन हमें मिल रही है. वंस यू लिव इन दैट वर्ल्ड देन यू आर नॉट जनरेटिंग वैलिडेशन खुद से. यू आर नॉट वैलिडेटिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट लुकिंग इनटू द मिरर एंड बीइंग लाइक नहीं यार तू एक अच्छा इंसान है.
तो वो सोशल मीडिया वैलिडेशन में जब आप डूब जाते हैं ना, तो आपकी अपनी वैलिडेशन बहुत ज़्यादा हर्ट होती है. तो टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दैट एंड टेक अ गुड हार्ड लुक. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी से वैलिडेशन like it's just positive reinforcement, that it's just wow Shazad you're amazing. It's not. It's also taking a good hard look at yourself in the mirror. I think a very big breakthrough for me was to look at myself in the mirror, and I've had body image issues as well, and be like, yes, you're so imperfect, but that's fine. Yes, ये तुम्हारे चुतियापे हैं, but that's completely all right. It's completely all right. Everybody is imperfect in their own ways. Why do you need to be perfect? Why? And whoever you are, the person that I see right now, and that was my breakthrough moment. I was looking into the mirror, and because I've had body image issues, this is big for me. It was right out, or I was going to take a shower, so I wasn't wearing anything. I was looking in the mirror and to see myself and be like, "नहीं यार, तुम एक खूबसूरत इंसान हो," and खूबसूरत with all that imperfections, right? Not just कि oh, your Vogue magazine cover, because you're not, and you won't be, because those are heavily photoshopped, and that's just. तो ये स्टैंडर्ड से अपने आप को ना कंपेयर करना, अपने आप को थोड़ी सेल्फ एम्पैथी देना कि यार हाँ आई वाज ट्राइंग. अभी जिस तरह हमारा केस था, मैंने की ना स्टूपिड हरकत, मैंने एक्नॉलेज की ना उसकी, एंड आई गॉट इनटू अ मोड ऑफ सेल्फ हेट एंड अ फ्रेंड रियली टॉक मी आउट ऑफ इट. तो क्या करूँ अब, मैं मार दूँ अब? नहीं ना, मैं गलती की, उसको एक्नॉलेज किया, माफ़ी मांगी, अब इसका बिहेवियर अच्छा होगा. इट डजंट मेक मी अ बैड पर्सन, इट सेज आई डिड समथिंग बैड. लाइक इफ यू से समथिंग रेसिस्ट, we jump very quickly from you said something racist to you are a racist, and then people who let that seep in, and again I'm just talking about people who probably feel the same way as me. दूसरी तरफ भी है ना जिनको लगता है कि हम तो खुदा हैं, हम तो कुछ गलत नहीं कर सकते. वो एक नार्सिसिज्म डिसऑर्डर भी है. मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा. तो अगर आप हैं जो नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर ले लेते हैं और पॉजिटिव चीज़ें अंदर नहीं ले सकते, या आपको कोई मसले हैं, आपको औरों पे नहीं रिलायंट होना, आप खुद ही कर सकते हो, कहीं और से नहीं आएगा. सेल्फ लव है ना, सेल्फ से आ सकती है. तो अगर अपने आप से प्यार नहीं आ रहा, तो दूसरी दुनिया आपको कहती रहे, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. पूरी दुनिया आपको कहे कि नो मैन, यू आर ग्रेट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. जब तक आप दिल से उसको नहीं बिलीव करेंगे ना, ये दूसरे की रिलायंस आपको कमज़ोरी करेगी. या इवन व्हेन यू आर कमिंग टू अ ब्रेक थ्रू, यू आर ट्राइंग टू हियर वॉइस इन योर हेड, यू आर लाइक ओ शिट, बिफोर आई हैव अ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, लेट मी कॉल अ फ्रेंड, लेट मी टेक्स्ट अ फ्रेंड, लेट मी सी कि मुझे यहाँ से वैलिडेशन मिल जाए, मैं कोई ट्वीट कर दूँ, उसको लाइक्स और शेयर्स आ जाएं. आप बस ज़्यादा ही ज़्यादा वो अनहेल्दी हैबिट्स में फंसते जा रहे हो. इट्स लाइक अ ड्रग, you're taking a drug. But like self validation is very important, that is right. लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, if I like put some content out, तो मेरा like impulse होती है कि the two most important people in my life, मैं उनको फोन से भेज देता हूँ. I'm like यार, what do you think of this? मुझे खुद पसंद है, but what do you think of this? मतलब like room for improvement मुझे बताओ, criticism दो. And like sometimes बिल्कुल फर्क पड़ते हैं दो, बिल्कुल दो फर्क पड़ते हैं सर. क्या हम कंटेंट बेस्ड बात कर रहे हैं, वो अपने अंदर की बात कर रहे हैं एज अ पर्सन, ठीक है. कंटेंट बेस्ड बात बिल्कुल भाई सही है. फीडबैक इज, वो क्या कहते हैं, एम्पावर्ड. प्लीज फीडबैक देख के बंदा बात नहीं कर रहा बिलाल, मैं इस कंटेंट की बात नहीं कर रहा, पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा. लाइक मैं अपनी तस्वीर भी लगाऊं. अच्छा, आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ स्कार्स, राइट. तो आई एम लाइक प्रीटी कॉन्शियस अबाउट इट. मैं कोई तस्वीर भी डालता हूँ तो मुझे करोड़ गुना सोचता हूँ पहले कि मैं यार डालूं या ना डालूं, बिकॉज आई हैव ओसीडी एज वेल, ठीक है. तो मुझे होता है कि बिल्कुल परफेक्ट हो, जब लगाए जाए ना, तो फिर मैं लगाता हूँ. तो उसके बाद सबसे पहले आई सेंड दैट पिक्चर टू दोस टू पीपल, ठीक है. फिर मैं पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, और फिर एंड इफ खुदा ना खास्ता वो कहते हैं कि यार इतनी मजे की नहीं है, और इट्स जस्ट ओके, माय इम्पल्सेस किक इन, आई एम लाइक यार नहीं, I messed up, this isn't right. फिर मैं सोचता रहूंगा और फिर मैं रात को आर्काइव कर दूंगा वो तस्वीर, and yeah. That is self doubt and less low self esteem in a way. That is, I know. Yeah, but it's so when you say कि I ask for constructive criticism, are you asking for constructive criticism, or are you asking for validation? I am asking for constructive criticism. But are you though? Because अगर वो बुराई करते हैं तो फिर तुम नहीं, ये बुराई नहीं करते ना कि यार, मतलब बात वो सही करते हैं. नहीं, लेकिन
अपना बुरा काम फेस करने की जगह क्यों नहीं है यार? कोई बुरी तस्वीर But it's लगाइए not उसको बुरा फेस करने काम की। ना, it's a picture यार, it's a picture वही of you, ना। right? तो वही कह रहा हूँ, अगर कोई इसमें चीज बुरी लग रही बुराई है उनको, अच्छाई उसको क्या है यार? आर्काइविंग और डिलीटिंग इट, उसको अब रखा क्यों नहीं रखते? व्हाई डोंट यू डिफेंड इट और अच्छाई की बात टेक इट नहीं, एज योर ओन? it's my like this obsessiveness with perfectionism ना, अच्छाई OCD की बात की नहीं बात करता की, मैं। OCD की मैंने बात की कि like हम्म। everything जो भी मैं डालता हूँ it has to be like perfect and everything asymmetrical and like what not, ठीक है? तो that's the issue ना, ये नहीं कि yeah देखो यार, अब देखो, if you make a video and जी उसमें 4 transitions अच्छी नहीं थी, and you're like, I'm going to fix this and make it better, that's also fine. That's also fine, right? Like if you want to be better at your craft, that's also fine. It doesn't speak to issues. Everything doesn't have to be कि यार मेरे deep rooted issues हैं इसलिए मैं archive कर देता हूँ. If you want to be better at your craft, that's also fine. Bradley Cooper है, उसने यहाँ Star is Born I think ये तीसरी दफा बनाने की कोशिश की थी, right? Because he wanted to make it perfect, and that's or as good as he could. And that's also fine. It's just when you archive it, if you feel like you failed, that's the problem, right? If you feel like you weren't enough, that's the problem. That's the feeling that we need to explore and figure out that you don't feel that way. But if you're like, oh no, I can do better, that's fine. What is failing but promising yourself to do better next time? But if you fail and you turn that into I am a failure, कि जी मैंने एक एग्जाम दिया, मेरे मार्क्स बुरे आए, I have failed and I am a failure की एक बहुत फाइन लाइन का फर्क है, वो नहीं क्रॉस Extreme करना in चाहिए. both ways is wrong in this case ना। In this case there's a fine line. Extreme अगर आपको कि भाई मेरा काम अच्छा ही है चाहे खच तरीन हो, वो भी गलत है। लेकिन आपको भाई मेरा काम बहुत ही फारिक है, वो भी गलत है। आपको यार वो भी समझना ठीक है पड़ेगा। यार, वो भी ठीक है ना, बिकॉज हम कमोडिफाई भी तो करते हैं. अब देखो जिस तरह सिंगर है, व्हेन वी से जी गाना नहीं आता, व्हाट डू वी मीन? व्हाट डू वी मीन? किसको नहीं गाना आता? कोई इंसान है दुनिया में जिसको गाना नहीं आता? नो, एवरीबडी सिंग्स, एवरीबडी नोज हाउ टू सिंग. अब आई लव ताहिर शाह, आई लव ताहिर शाह. उससे ज्यादा अनअपोलोजेटिक कौन हो सकता है कि यार मैं गाना बनाऊंगा, मैं अच्छा गाना बना रहा हूं, मुझे ये गाना पसंद है, I get happiness from it, I want to promote love. 2 गालियां. legend. You think Tahir Shah doesn't know he gets trolled? Of course, like कितना बंदा ignorant हो सकता है, उसको पता है. But he's just going to make that product, and if it brings him joy and brings him happiness, it's great. I love Nasir Khan Jan. नासिर खान जान तो genuinely content भी अच्छा है, but गाना सबको आता है यार. It's just हमने commodify भी तो किया हुआ है ना, कि लाइक्स कितने मिलेंगे, शेयर्स कितने मिलेंगे, इसका एल्बम बिक सकता है. नहीं भाई. Also somebody makes ये भी तो issue है, content, our perception of what content is good and what content is wrong. yeah. So if you think your content is good and you get happiness from it, that's fine, right? अब मैं हूँ, मुझे पता है कि यार ये 3-4 चीजें हैं, इसके बारे में ट्वीट करो आ जाएंगे, ठीक है. मैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद, ये जो लेफ्ट हैं ये कुत्ते के बच्चे हैं सारे, ये जो डॉन वाले हैं यहूदी साजिश हैं जी, फुल मेजर ट्वीट हैं. अब भी मैं कर दूं कि आंसू आते हैं मुझे इमरान खान को देख के, आवर नेशन डजंट डिजर्व अ मैन लाइक हिम. फुल लाइक्स शेयर्स हैं, ठीक है. अगर मेरा सिर्फ इंटरेस्ट लाइक्स एंड शेयर्स होता तो मैं इस तरह की बातें कर देता. अगर मैं कंटेंट बनाता हूँ एंड आई नो it might not get the reach, but it's content I believe in, and it might be content I don't believe in 2 years. I might look back and be like नहीं यार ये ज़रा बेहतर हो सकता था. That's also fine, it's part of my process. So if you're making content for yourself and you think it's good and other people don't, ठीक है, आप बनाओ, आपको खुशी मिल रही है. आर्ट को कमोडिटी नहीं होना चाहिए ना. इसमें सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की सारी बात, सारी खेल ही गेम ही उसका है कि व्हाट सूट्स यू, व्हाट व्हाई यू डूइंग व्हाट यू डूइंग एंड हाउ यू डूइंग व्हाट यू डूइंग, सिंपली. बाकी फिर चिल है, एज लॉन्ग एज यू डूइंग फॉर योरसेल्फ. पहले ही कहा था दुनिया खत्म होने वाली है, जो करना ही करो यार. अगर आपको खुशी मिलती है और दूसरे को दुख नहीं मिलता, ठीक है ना. वो जिस तरह कहते हैं मेरी लिबर्टी वहाँ खत्म होती है जहाँ तुम्हारी नाक शुरू होती है. मैं अगर किसी और से कुछ नहीं छीन रहा, जो करना ही करूँ मैं यार, क्या टेंशन है. फरिश्ता बनाऊं मैं, क्या फिट एनिमेशन भी. उड़ता हुआ आ रहा है. एनिमेशन वैसे काफी बुरी थी. ताहिर शाह मुझे बहुत पसंद है.
बड़ा अल्लाह माफ करे, एनिमेशन बहुत बुरी थी उस वीडियो हाइप किया, इतना ज्यादा हाइप किया, एंड इन द एंड एक गूगल का ट्रांसलेट किया हुआ वर्जन हमें दे दिया उसने. हाँ मैंने काउंटडाउन किया था, मैं उसको ट्वीट कर रहा था कि निकाल, कब निकाल रहा है. आई थिंक कुछ 11:15 जो डेट उसने दी थी, आई थिंक कुछ 11:15 रात के 45 मिनट्स बिफोर द डेट चेंज रिलीज हुआ था. मैं रिफ्रेश कर रहा था कि यार ये आएगा. अच्छा, आई डू विश इट वाज समथिंग न्यू. ठीक है यार, उसने अपने बच्चे के लिए बनाया है, उसको खुशी मिली, बना दो. अच्छा चलो, let's talk about yourself. Tell us about TVP और Cogito Productions. तुम कितने लंबे करते हो? आई जस्ट चेक द टाइम. हाँ, I know. We're just gonna finish it up last season. तो अब क्या, कितनी हिस्ट्री में जाना है, क्या पूछना है Cogito के हल्का बारे में? फुल्का ही बता दो about TVP क्या है, कब फॉर्म हुआ. नहीं, actually, let's forget that. Tell me about your mental health movement, Kun. यार मूवमेंट इसीलिए है कि आप एक सपोर्ट ग्रुप बनाओ. आई एम नॉट अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, अनफॉर्चुनेटली. अ लॉट ऑफ पीपल मैसेज मी, और मैं खुद भी इतना बेहिस फील करता हूँ कि अगर रात के 4 बजे कोई आपको मैसेज कर रहा है कि यू नो आई माइट डू समथिंग, और मैं क्या बोलूँ यार, मुझे नहीं पता, मैं नहीं ट्रेन हुआ. मैं बात करता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने क्या किया है, मुझे नहीं पता. और मेरी खुदा की कसम इतनी फटती है कि यार मैं कुछ गलत ही ना बोल दूँ. आई डोंट नो, आई एम नॉट ट्रेन्ड. सो it's as somebody who is empathetic, it's very personally draining as well. कि यार अब एक दफ़ा किसी ने मैसेज किया कि यू नो आई एम थिंकिंग, आई एम सुसाइडल, एंड देन दैट पर्सन डिडंट रिप्लाई फॉर 2 days. अब मेरी तो सांस बंद. अब जान ना पहचान रैंडम मैसेज कहाँ से पता करूँ, कौन है, क्या है. 2 दिन बाद उसका रिप्लाई आया. whatever that person got busy, but मेरे दिमाग में तो I was done, right? I was like, oh shit, for 2 days I was thinking about that person. तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता यार, मैं कोई इतना मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मुझे कुछ ज़्यादा पता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिल्ड सपोर्ट ग्रुप्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिल्ड कम्युनिटीज़ कि सेफ स्पेस हो, सब अपनी बात कर सकें. तो एक आइडिया उसका ये है, किसी सेफ स्पेस हो, सब एक दूसरे से बात कर सकें, रिसोर्सेज शेयर कर सकें. इनफैक्ट जो हमने साइकोलॉजिस्ट का किस्सा सुनाया था, that also, I mean, I've been wanting to do this for a while, but that also gave me the impetus to do it quickly, because उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने बताया उनके बुरे केसेस. सो ऑल्सो टू रिकग्नाइज के जी ये साइकोलॉजिस्ट है, आप अगर LGBTQ कम्युनिटी से आप जाएंगे तो ये बोलेगा काफिर है, मार दो अपने आप को. तो ये फ्लैग कर दें कि कोई और जाके इस तरह तबाह ना हो इसके पास. बी द आइडिया ऑफ कॉननेस, कॉन मीन्स बी. I think we need to realize we just need to be, especially in quarantine. इस तरह की बातें करते हैं ना कि जो Shakespeare wrote King Lear and Macbeth while he was in quarantine. What are you doing? Well, there's a global pandemic. शेक्सपियर के पास ये फ़ोन नहीं था कि जी अब 1000 हो गए, 2000 हो गए, अब 4000 हो गए, अब रिसर्च कहती है बच्चे भी मर सकते हैं, अब रिसर्च कहती है कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं. इट्स एन एंग्जाइटी फिल्ड टाइम. हमने एक सोसाइटी बनाई दी है, जब तक आप प्रोडक्टिव ना हो, जब तक आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हिस्सा ना हो, तब तक आप इंसान ही नहीं है, राइट? कि ये हमें सेंस ही नहीं बनता कि क्या मतलब गरीब लोग काम नहीं करेंगे और उनको खाना मिलेगा, ये कैसे हो सकता है? इस मुल्क में हम कैसे रह सकते हैं कि गरीब इंसान मजदूरी ना करे और उसको खाना मिल जाए? ये थोड़ी हो सकता है, ये सस्टेनेबल थोड़ी है, ये हम कंप्यूट ही नहीं कर सकते. व्हेन वी से कि आइदर वी कैन सेव द इकोनॉमी और सेव द हेल्थ केयर सिस्टम, वी डू नॉट कंप्यूट ऑफ अ सिस्टम दैट वी हैव द मनी टू फीड पीपल, बट ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना. इट्स नेवर बिन, पाकिस्तानी लाइव्स हैव नेवर बिन आवर प्रायोरिटी. तो कुन मीनिंग बी, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डू इज जस्ट बी. समटाइम्स इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट यू डोंट जस्ट नीड टू बी. एंड इवन व्हेन मैं अपनी बात कर रहा था कि लोग कहते हैं कि यार यू नो जस्ट यूर अ कमेडियन, टेल अस अ जोक. द रीजन इट्स आल्सो ट्रिगरिंग फॉर मी इज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव आल्सो सीन माई सेल्फ एज in terms of the value I bring, right? कि अगर मैं jokes कर रहा हूँ तो my friends will like me. अगर मैं you know मेरे पास अगर ये मैं इतना बेजार था जब तूने screenshot लिया कि you know sometimes you also think कि यार my friends are not calling me because they like me, it's because I have the pizza or I have the drugs or for whatever reason, and you're constantly like, I need to justify my seat at the table.
उसको अनलर्न करना और सीखना कि नहीं, just being is important. Sometimes you don't need to be the class topper. Sometimes you don't need to be Shakespeare. Just the fact that you're here, the fact that you're alive is enough. Just be. And जो हम ये लोगों पे pressure डालते हैं that you need to be the next Messi was whatever playing for Barcelona at 17. What are you doing, man? You're not Messi यार. आप नहीं है Messi क्या, और आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस सेम नहीं है. आप नहीं एक दूसरे के साथ कंपेयर करें. आप नहीं कंपेयर करें कि मैंने ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है. Just be, just breathe, be with yourself. And that's the idea of Kun. That's the philosophy. I've not been able to do as much or make as much content for that because honestly it's very very taxing. Anytime I talk about mental health, it takes a personal toll. Even जो वो आप psychologist वाला incident बता रहे थे, I was in a bad state for weeks after that. So it's hard to make content for that. But I अभी मेरी एक और TED talk भी आई है. So I'm trying to do as much as I can कि एक भी इंसान को अगर मदद मिल जाए ना, एक भी इंसान अगर सुसाइड करने जा रहे हैं या कुछ स्टूपिड करने जा रहे हैं और रुक जाए मेरी बात सुन के, तो कौन क्या या मेरी टॉक क्या, आई थिंक एवरीथिंग दैट आई डू हैज बीन वर्थ इट इफ आई कैन जस्ट मेक दैट इम्पैक्ट इन वन पर्सन's लाइफ. It was great having. सॉरी यार, मैं बहुत लंबी टेड टॉक्स दिए. मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशनल नहीं थी, मैंने बहुत लंबी बातें कर दी. It was really fun. काफी insightful बात हुई थी. Yeah, we had a lot of fun hosting you, Shahzad. थैंक्स यार, थैंक्स फॉर हैविंग मी. तुम लोग को किसी ने कोई परसेप्शन दिया था कि शहजाद तो ब्लॉक कर देता है क्या? वेयर इज ऑल दैट कमिंग फ्रॉम? तुमने शायद ब्लॉक किया हुआ होगा क्योंकि हमने जो ट्वीट की थी उस पर बहुत ज्यादा ना इस तरह के रिप्लाईज आए हुए थे. तो मैंने ब्लॉक तो किया हुआ लोगों को, ऑफ कोर्स मैंने काफी लोगों को ब्लॉक किया हुआ है. तो But शायद वही सिर्फ लोग थे क्योंकि ना बहुत ज्यादा लोगों ने ना काफी अजीबोगरीब से रिप्लाईज किए हुए थे यार. बट देखो, अगर सवाल ये है कि यू थिंक माय कॉमेडी इज बैड, यू थिंक आई एम बैड. एक let me just end this ताकि फिर थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक में फिर नहीं ऑन द रिकॉर्ड बात करो, कोई टेंशन नहीं है. ऑल आई एम सेइंग इज कि इफ यू हेट मी एंड यू थिंक everything that I do is bad, so shouldn't you be happy that I blocked you? I'm saving you from seeing me on your timeline. You should be very happy कि मैंने आपको purify कर दिया आपकी timeline from my presence. तो अगर आपको मैं बुरा लगता हूँ, जिस तरह मैं बात करूँ ट्रोल्स को अटेंशन चाहिए होती है, तो मेरा ब्लॉक करने से आपको मसला क्या है? Why what's the harm? And why is it an achievement? लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, yeah I managed to get blocked. भाई क्या अचीवमेंट थोड़ी है यार. तुमने किसी को इतना बेजार किया, इतना तंग किया. अचीवमेंट तब हो जब कि ना मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन करे, फिर थोड़ा है कि लाइक पूरी एक लाइक जगह आपने पिस कर दी है, लाइक that's an achievement. ठीक है. I mean खैर, बट या आई मीन अगर हैं भी कुछ और लोग, उनको बोलो भाई हमें भेजने सवाल, हम few months down the line we can do another podcast and I can answer every single question. I have no qualms. Okay. Inshallah, we should do something again. It was great having you, Shahzad. This was Mansoor Bugli. That was Mr. Shahzad Ghiyas Sheikh. Thanks everybody. Sorry मैंने बहुत ज़्यादा भाषण दिए हैं. कोई मसला नहीं. That was ज़्यादा ही बात करती है. हाँ, बिलाल सही कह रहे हैं. मेरा तो आधे टाइम आवाज आ रही थी, मैं चाह रहा था कि ना आए. जब मेरी आवाज भी क्लियर आ रही थी मैं तब भी बुड़ कर देता था, कुछ आप इतनी बकवास करते. अगर यही सब सुनना होता तो मैं अपनी जूम क्लास नहीं अटेंड कर लेता. हम यहाँ बकचोदी करने आए थे, आपने हमें वो कल्चर पे लेक्चर दे दिया. सॉरी बिलाल. Cute. Okay. Laugh. Thanks guys. Take care. Laugh.